একদিকে রেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অন্যদিকে বেঙ্গল স্টার্স। তারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। এই মুহূর্তে ম্যাচ অফিসিয়ালস তারা এগিয়ে চলেছেন। বলা হয় বাংলা যেটা ভাবে আগামীতে সারা ভারতবর্ষ সে ভাবনাটা ভাবে। তো দেখা যাক পারফরমেন্সের দিক থেকে আজকে বাংলার মাটিতে রেস্ট অফ ইন্ডিয়া দলের বিরুদ্ধে তাদের জয়টা অব্যাহত রাখতে পারে কিনা। এই ম্যাচ নিয়ে অনেক অনেক আশা ভরসা প্রত্যাশা রয়েছে, বিশেষ করে বঙ্গপ্রেমীদের, বাংলার ক্রিকেট প্রেমী মানুষদের। কারণ বাংলার মাটিতে লড়াই চলছে এবং সেখানে প্রিয় রাজ্যের খেলোয়াড়দের জয় দেখার জন্য মুখিয়ে থাকবেন প্রত্যেকেই। লাইটটা জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা অনুরোধ করছি। মাঠে লাইটের দায়িত্বে যিনি রয়েছেন, ग्राउंडे लाइटेर दायित्वे जिनी रयेछेन लाइटटा জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। ग्राउंड्स लाइट जला दीजिए, ऑन कर दीजिए। ग्राउंड्स का जो लाइट है लाइट ऑन कर दीजिए प्लीज। लाइट का जिम्मेदारी जिनके ऊपर है आपसे अनुरोध किया जा रहा है कि लाइट्स ऑन कर दीजिए।
তো নমস্কার, চলুন আমরা এক্সিবিশন ম্যাচের ক্রিকেট যুদ্ধ নিয়ে কথা বলা শুরু করব। টস হওয়ার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি বেঙ্গল স্টার্স তাদেরকে প্রথমে ব্যাটিং করতে হবে। গত ম্যাচে যে ব্যাটিং বিক্রম আমরা দেখেছিলাম পিকু পলের, সেই ব্যাটিং বিক্রমটা আরও একবার দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছে সারা বাংলা। কারণ ভালো কিছু করতে হলে বাংলাকে এ ম্যাচ থেকে পিকু এবং সাগর আলীর যে জুটি, তাদেরকে রান করতে হবে। দৌড় শুরু করলেন আন্নু। গত ম্যাচ পিকু পল যেখানে শেষ করেছিলেন, বাংলার জন্য বাংলার মাটিতে শুরুটা বোধহয় সেখান থেকেই করলেন। ডাগ আউটের একটা ছবি এক ঝলক ভেসে উঠেছিল। টিমের অনার মিস্টার ধনঞ্জয় সিং একদম রিল্যাক্স মুডে রয়েছেন, কারণ এই মুহূর্তে বাংলার সম্মানের লড়াইটা তার দল লড়ছে, বেঙ্গল স্টার্সের সমস্ত খেলোয়াড়েরা লড়ছে। একই সাথে স্বাগতম জানাবো রাজাকে। बहुत बहुत धन्यवाद सुमंत दा, स्वागत आप सभी का फिर से एक बार बंगाल स्टार वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया। पहला बॉल बाउंड्री के साथ शुरुआत बाहुबली का। बाहुबली के सामने गेंदबाजी करना उतना आसान है नहीं, क्योंकि पिछला मैच में जिस फॉर्म की संकेत दिए थे उन्होंने, वो शतक से चुके थे, मगर एक ऐसी इनिंग्स वो खेल गए जो सेमीफाइनल में फाइनल तक पहुंचा गई अपनी टीम को। দেখো না যে ফাইনালে লড়াইটা এখনো বাকি রয়েছে, তবে তার আগে এটা সম্মানের লড়াই। রেস্ট অফ ইন্ডিয়া নাকি বেঙ্গল স্টার্স, কারা জিতবে, এ সম্মানের লড়াই কারা জয়ী হবে, সেদিকেই নজর সবার। আন্নুর বল, বলের লাইনে গিয়ে সেখান থেকে ড্রাইভ, ফিল্ডারের হাত থেকে ফেরত আসবে বল, একটা রানও চলে আসবে। কি মনে হচ্ছে রাজা, বাংলার মাটিতে বাংলার ছেলেরা এই ম্যাচ থেকে জয়লাভ করতে পারবে নাকি রেস্ট অফ ইন্ডিয়া তারা ভারী পড়বে বেঙ্গল স্টার্সদের বিরুদ্ধে? कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों टीम काफ़ी अच्छी है। और क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से खेल हो रहा है, बंगाल को थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं। बाकी जिस तरीके से पूरे ऑल ओवर इंडिया के क्रिकेटर बंगाल में एक पूरा सीजन खेलते हैं, तो वो लोग भी अब कहते हैं कि बंगाल मेरा दूसरा घर है। এবং এই টিমের প্রত্যেক প্লেয়ারকেই তুমি বলতে পারো তারা কিন্তু গত 3টে দিন ধরে, আজকে নিয়ে 4টে দিনে পা দিল, তারা কিন্তু প্রত্যেকেই মাঠটায় ক্রিকেট খেলছে। এই 22 গজটায় তারা প্রত্যেকেই ক্রিকেট খেলেছে। সুতরাং অচেনা জায়গায় গিয়ে যে ওয়ার্ম আপের ব্যাপারটা থাকে সেটা কিন্তু অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেছে, কারণ মূল পর্বে টুর্নামেন্টের সাথে প্রত্যেকেই জুড়ে রয়েছেন। কেউ বা ফাইনাল খেলবেন, কারুর দল আবার সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছে, কেউ বা আগেই বিদায় নিয়েছে। যাই হোক না কেন, এ মাঠে 5টা করে ম্যাচ খেলার সুযোগ অন্ততপক্ষে WBTCL এর সৌজন্যে প্রত্যেকের কাছে এসেছে। बिल्कुल सही कहा आपने, सारे प्लेयर्स ने लगभग 5-5 मैच खेले, तो वो चीज़ ज़रूरी है। सन पीकू फिर से एक बार फॉर्म बरकरार रखते हुए एक और बाउंड्री लगाई है। ফর্মে থাকা ব্যাটার, ছন্দে থাকা ব্যাটার, তারা চাইবে বাংলার জন্য শুরুটা ভালো করতে, এবং পিকুর চওড়া ব্যাটের উপরে অনেকটাই ভর করতে হবে। এক্ষেত্রে আরো একবার বড় শটের চেষ্টা ছিল, বড় শটের খোঁজ ছিল, বল পায়ে গিয়ে আঘাত করেছিল, একটা লিগ বিফোর উইকেটের আবেদনও ছিল, তবে সেই আবেদনে সাড়া দেননি ম্যাচ আম্পায়ার। স্কোর আপডেটসটা নেই, এলইডি স্কোরবোর্ড যিনি অপারেট করছেন তাকে বলছি স্কোর আপডেটটা পাওয়া যাচ্ছে না। প্লিজ एलईडी स्कोरबोर्ड को थोड़ा ठीक कीजिए। এক্ষেত্রে সামনের দিকে ড্রাইভ, রানা বিনাশ, একটি রান। চলমান প্রথম ওভার এবং প্রথম ওভারের খেলার সমাপ্তি। প্রথম ওভার থেকে 12 রান, কোনো উইকেটের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। বেঙ্গল স্টার্স তারা কিন্তু শুরুটা ভালো করেছে। দুটো দলেই আমরা যদি অপশন দেখি, প্রচুর অপশন রয়েছে, দুটো দলেই প্রচুর ম্যাচ উইনার রয়েছে, প্রায় প্রত্যেকেই চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড়, এবং সেই কারণেই বোধহয় এই ম্যাচটা এক্সিবিশন ম্যাচ হলেও
কোথাও না কোথাও চ্যাম্পিয়নদের চ্যাম্পিয়ন খুঁজে বের করার একটা ম্যাচ। আচ্ছা, একটি বিশেষ ঘোষণা, আমাদের গেটের সামনে 456 গাড়ির নাম্বার, গেটটা বন্ধ হচ্ছে না, দুটো গাড়ি রয়েছে 4 হুইলার, গাড়িগুলো একটু এগিয়ে নিতে হবে, যাদের গাড়ি একটু দ্রুত যাবেন। এবং এলইডি স্কোরের দায়িত্বে যিনি আছেন আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে এলইডি স্কোর বোর্ডটা সচল করার জন্য, এলইডি স্কোর বোর্ডটা চালু করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যিনি দায়িত্বে রয়েছেন এলইডি স্কোর বোর্ডের। দ্বিতীয় ওভার অঙ্কিত কালকি। প্রথম বলটা একটু বিপজ্জনকভাবে হাওয়াতে রয়ে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। অপোনেন্টও বুঝতে পারছে এখানে পিকু পলের উইকেটের গুরুত্বটা কতটা, কারণ পিকু ছন্দে রয়েছে। এই জায়গায় বলটা অল্প বিস্তর আরও একটু ক্যারি করলে ফিল্ডারের হাতে যেত এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ উইকেটের পতন হতে পারত। ওদিকে সাগর আলী স্ট্রাইকে আসবে, প্রথমবারের জন্য এই ম্যাচে বল ফেস করার সুযোগ রয়েছে। দল ফাইনালের যুদ্ধ থেকে ছিটকে গেলেও নিজে এখনো পর্যন্ত বাংলার সম্মানের লড়াইটা লড়ার জন্য মাঠে উপস্থিত ছিলেন এবং চাইবেন দলকে একটা ভালো স্টার্ট দিতে, কারণ একটা প্রান্ত থেকে পিকু রান তুলছে, অন্য প্রান্ত থেকে সাগর জুটি বাঁধবেন তার সাথে। जिस तरीके से टीम है, अगर देखें आप रेस्ट ऑफ इंडिया टीम को देख रहे हैं, कितने सारे बॉलर, अब किसको छोड़ेंगे? राजू मुखिया, अंकित सिंकल की, अन्नू अंबाला, साथ ही साथ विजय पावले, विश्वजीत ठाकुर बॉलर है या फिर बॉलर की कंपनी? शॉट है सागर साहब, गैप में खेला गया, एक रन तो आसानी के साथ, दूसरा शायद अगर पहला रन तेजी के साथ दौड़ते तो फिर दूसरा रन भी पूरा कर सकते थे। একদমই, তবে প্রথম থেকে বোধহয় এটা ভাবনার মধ্যে ছিল না যে দ্বিতীয় রানের জন্য আমাদেরকে দৌড়তে হবে, কারণ একটু ঠান্ডা মাথায় খেলার চেষ্টা প্রথম থেকে। এক্ষেত্রে সুইচ ইট করার প্রচেষ্টা ছিল। অঙ্কিতের বিরুদ্ধে একটু যেন অগোছালো লাগছে পিকুকে, কারণ অন্যান্য বোলারদের বিরুদ্ধে যতটা শাসন করার মনোভাব দেখা গিয়েছে, এক্ষেত্রে যেন দুটো একটা বল এমন এলো যেখানে মনে হলো পিকু পল স্ট্রাগল করছে। क्या बात है अंकित साहब, चारों खाने चित कर दिया आपने। विकेट के पीछे आप देखिए मुन्ना शेख को देख रहे हैं, पिछले मैच में ही एक दूसरे के साथ खेल रहे थे पिकू पॉल और मुन्ना शेख। ये खूबसूरती है इस टूर्नामेंट की, WBTCL वेस्ट बंगाल टेनिस क्रिकेट लीग, मगर इस समय हो रहा है एग्जीबिशन मैच। एक तरफ है पूरी इंडिया के स्टार्स और साथ ही साथ बंगाल के स्टार्स। এবং আমি বারবার বলছি দুই দলেই চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড় যেহেতু রয়েছে রাজা, সুতরাং লড়াইটা খুব টাফ হবে। অন্ততপক্ষে এই চ্যালেঞ্জকে অ্যাচিভ করতে হলে, নিজেদেরকে সেরায় পরিণত করতে হলে বেস্ট ক্রিকেটটা খেলতে হবে। बेस्ट क्रिकेट तो यहीं खेल रहे भाई साहब, मैदान में बस पीकू ही नजर आ रहा है, जब इनके बल्ले से बॉल लगती है तो बाहर ही जाती है। और बेस्ट गेंदबाज को इस समय पिटाई हुई है। इस चार के साथ 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 18 स्कोर और विकेट के खाते में 0 है। 2 ওভার 18 রান, উইকেটের কোনো ক্ষয়ক্ষতি নেই। পিকু যেভাবে খেলছে একটু হলেও তার দল এডিএস হাওড়ার টিম মেন্টার, অর্থাৎ মূল টুর্নামেন্টে তার দল এডিএস হাওড়া এবং তার মেন্টার শুভ্রনারায়ণ দাসমণ্ডল, তিনি কিন্তু একটু চিন্তায় রয়েছেন। এক মনে প্রাণে চাইছেন পিকু এই ছন্দটা বজায় রাখুক, আবার এটাও অন্য দিক থেকে চাইছেন যে অ্যাটলিস্ট ফাইনালের জন্য রান বাঁচিয়ে রাখুক, সব এফোর্টটা যেন এই এক্সিবিশন ম্যাচেই না खर्च हो जाए। तो इतने सारे बॉलर आपके पास मौजूद है ना कि आप ऑप्शंस जब ज्यादा हो जाए तब भी आप परेशान होते हैं, जब ऑप्शन कम हो तभी परेशान होते हैं। राजू मुखिया मौजूद है, विजय पावले मौजूद हैं, साथ ही साथ देखिए विश्वजीत ठाकुर अब आ चुके हैं, करण अंबाला। मतलब है कितने गेंदबाज, किसको आप इस्तेमाल करोगे? 8 ओवर का जो गेम है ये, তো 8 ওভারে 8 জন বোলারকে বোলিং করানোর মতন জায়গা বোধহয় রয়েছে রাজা। अविनाश राणा भी इस्तेमाल करेंगे 1 ओवर शायद, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। 2 ওভার 18 রান,
বেঙ্গল উইকেট না হারিয়ে শুরুটা ভালো করেছে। এগিয়ে যেতে হবে, এখান থেকে রান বানাতে হবে তৃতীয় ওভারের বোলিং করার জন্য। কারণ আম্বালাকে নিয়ে আসা হয়েছে তৃতীয় ওভারের বোলিং ডিপার্টমেন্টে। এই টুর্নামেন্টে আমরা যদি বলি কারণ সেভাবে তার দল কিন্তু ছাপ ছাড়তে পারেনি, তবে এক্সিবিশন ম্যাচে অন্ততপক্ষে এই টুর্নামেন্ট ছাড়ার আগে, এই মাঠ ছাড়ার আগে নিজের যে পারফরমেন্স সেটা মেলে ধরতে চাইবে আরও একবার। सेंसिबल क्रिकेट है ये, अच्छी तरीके से जानते हैं कि पिकू जितने ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे उतना फायदेमंद रहेगा। सागर अली का एक सेट रोल रहता है कि थोड़ा सा वक्त देते हैं पिच पर, और जब जब वो वक्त दिया है उन्होंने पिच से उन्हें काफ़ी ज़्यादा रन मिला है। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ তুমি দেখো পিকু যে ছন্দে রয়েছে সে তার ছন্দটাকে ক্যারি করতে চাইবে এবং অপর প্রান্ত থেকে সাগরের রোলটাই হবে অ্যাঙ্কারের। অন্ততপক্ষে যতক্ষণ পিকু রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত স্ট্রাইকটা পিকুর কাছেই বেশি মানে রাখার। তবে এর আগেও যতবার বাংলার ছেলেদের বিরুদ্ধে রেস্ট অফ ইন্ডিয়ার ম্যাচ হয়েছে বাংলার মাটিতে, সব থেকে এক্স ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে যে খেলোয়াড়, সে হলো হলচল যাদব। তো হলচলের এ ম্যাচে কি রোল থাকবে সেটাও দেখার। कितनी दूर गई है, बाउंड्री नहीं, ओवर बाउंड्री देकर गई है। इसी वजह से मैं कह रहा था कि जब आप फॉर्म में मौजूद है ना तो फिर उनका स्ट्राइक में रहना बनता है। ऐसी बल्लेबाजी, वो कहते हैं कि मिट्टी को हाथ लगाए सोना बन जाए, वो मिट्टी को हाथ लगा रहा है, सोना बन भी जा रहा है। 25 रन विकेट के खाते में 0 है। और इस बार देखिए ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर, हल्के हाथों से खेले पिकू, वहां पे जानते थे कि फुलर लेन डिलीवरी है तो बस दिशा दिखाने की जरूरत थी, और इसी बीच और एक रन। 26 पे 0, एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं आप, क्योंकि अभी तक अगर देखें सुमंतता 3 बेस्ट गेंदबाज के सामने आपने सामना कर लिया है। अंकित कल्की को देखा आपने, साथ ही साथ अभी करण अम्बाला को देख रहे हैं, एक ओवर अन्नू को देखा आपने, 3 बेस्ट बॉलर। जी बिल्कुल, और सामने जो 2 बैटर है वो 2 बैटर भी बिल्कुल बेस्ट हैं और अपने दिन में परेशान कर सकते हैं हर किसी बॉलर को, वैसा ही क्रिकेट खेलने की कोशिश में है। सागर थोड़ा लय में दिख नहीं रहे हैं, और जितना जल्दी जल्दी वो अपने फॉर्म शो करेंगे बंगाल स्टार्स के लिए उतना ही अच्छा है। बिल्कुल उतना बेहतर होता जाएगा। वो अभी मैदान पे बस वो एंकर का रोल अदा कर रहे हैं, जान रहे हैं कि पिकू जिस फॉर्म में अगर वो अंतिम 3 या 4 ओवर खेल लिए या 6-7 ओवर तक वो खेल गया तो फिर स्कोर अभी जो 27 दिख रहा ना वो 97 भी हो सकता है। जी बिल्कुल, और पिछले मैच में भी देखे थे पिकू जिस तरह से बैटिंग किए थे, रन 100 के उस पार हो गया था, तो वैसा ही कोशिश फिर से एक बार होगा पिकू के द्वारा। और दूसरी तरफ से रेस्ट ऑफ इंडिया शुरू से ही विकेट उठाना, खास करके पिकू का विकेट। कमाल की गेंदबाजी, तेज गति के साथ डाली इस बार कुछ समझ नहीं पाया पिकू बॉल। अच्छी गेंदबाजी दिखी है इस समय। वेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस बेस्ट ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के स्टार्स। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पे है, एक बॉल अभी भी बाकी है। 27 रन, 27 रन। और सबसे अच्छी चीज यह है कि अभी तक बंगाल स्टार्स ने कोई विकेट खोए नहीं है। फिर से एक बार ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर, फुलर लेंथ, यॉर्कर की कोशिश, बस गाइड किए थे पीकू और सिंगल के लिए दौड़। तो चलिए 3 ओवर का खेल यहीं पे समाप्त। 3 ओवर के बाद 28 रन बंगाल स्टार्स की स्कोर, और ये 28 रन में कोई विकेट अभी तक गवाए हैं नहीं। तो बेहतरीन क्रिकेट, बेहतरीन स्टार्ट कह सकते हैं। बिल्कुल अच्छी शुरुआत है ये, और इसी शुरुआत की जरूरत भी थी बंगाल स्टार्स के लिए। अब गेंदबाजी के लिए फिर कौन आएगा ये भी सवाल रहेगा। अंकित कल्की को आप देख सकते हैं, या फिर राजू मुखिया में भी अंकित कल्की ही आएंगे, वही देख रहे हैं, शायद अंकित कल्की, या फिर कौन आएगा।
ऑप्शंस आपके पास काफी मौजूद है और अब देखिए रेस्ट ऑफ इंडिया के टीम ऑनर विशाल कपूर जी को देखा आपने। अट्ठाईस पे शून्य है, 3 ओवर हो चुके समाप्त है, 28 रन, विकेट अभी तक एक भी गवाही नहीं है। यानी कोलकाता के सारे स्टार, बंगाल के स्टार, बंगाल के शारे शान बीच मैदान क्या चलेंगे सीना तन, और साथ ही साथ पूरे भारत के स्टार्स भी मौजूद हैं, तो फिर बेहतर मुकाबला आपको देखने मिलेगा। और राजा, जिस बात की आप जिक्र कर रहे थे कि इस टीम में बहुत सारे बॉलर हैं, तो अगले ओवर में किसको बॉलिंग के लिए लाया जाएगा, तो देखिए विजय पावले खुद आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। नए ओवर की शुरू होने जा रही है, चौथे ओवर का खेल शुरू होगा। 28 रन स्कोर बोर्ड पे। ऐसा लगा टीम इंग्लैंड है ये, इंग्लैंड के पास वो 8 के 8 गेंदबाजी कर सकते हैं, 10 के 10 बल्लेबाजी कर सकते हैं, वो भी कुछ इस प्रकार का ही टीम है। जोरदार अपील, उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, अंपायर आर नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन पहली गेंद जिस तरह से तेजी के साथ फेंके थे वहां पे विजय पावले ने, गति को समझने में थोड़ा बहुत तकलीफ यहां पे पीकू के द्वारा। अच्छा क्रिकेट पिगू पॉल के द्वारा दिख रहा अभी तक, जिस तरीके से वो चाह रहे हैं, जैसा इनिंग्स को बिल्ड करना चाह रहे हैं, अपने तरीके से अपने मन मुताबिक खेल रहे हैं, और यही खासियत है उनकी, और ये उसे परिपक्वता से परिपूर्ण करता जा रहा है। आने वाले समय में जब जब उनका मैच अब देखेंगे, वो सबने देखा था वो छक्के लगाने के लिए जाने जाते पिकू साहब, मगर अब छक्के तो लगाते हैं, साथ ही साथ चौके भी लगाते हैं अच्छे, साथ ही सिंगल्स भी ले रहे हैं, फील्डिंग भी वो दर्जे कर रहे हैं, फिटनेस पे काफी ध्यान दिया इन्होंने। इस बार सागर का बल्ला बोला है, कितनी दूर गई है, 6 रन देकर गई है। इसी चीज का इंतजार कर रहे थे सागर साहब। शांत हैं, मगर स्वभाव से इनका सबको मालूम है क्या स्वभाव अपना सकते हैं, जब चाहे भेज सकते हैं गेंद को बाहर। सरोज प्रमाणिक की कप्तानी में पूरी उतरी है बंगाल के स्टार्स। और राजा, इस टूर्नामेंट में भी हम लोग देखे हैं सागर जिस तरह से बैटिंग की है, काफी बढ़िया बैटिंग सागर की तरफ से दिखने को मिला है, और जब जब जरूरत हुई है अपनी टीम को रन बनाने की, सागर का बैट बोला नहीं है, सर चढ़ के बोला है। इस बार भी देखिए पहले शुरू में थोड़ा खामोश सागर का बल्ला, लेकिन जैसे ही देखे कि दूसरी तरफ से पीकू थोड़ा बहुत स्लो हो रहे हैं, तो सपोर्ट देने के लिए अपने बैट को स्विंग करवाए और बेहतरीन शॉट मिला। लेकिन दूसरे ही गेंद पे विजय पावले ने भी अपना वापसी किए हैं, पिछले गेंद से जहां पे छक्का जड़े थे सागर, तो दूसरी गेंद पे वहां पे विजय पावले अपना वापसी भी किए हैं। यही होती है एक्सपीरियंस। अच्छी गेंदबाजी तेज गति के साथ डाली गई है। अब रिव्यू आपके पास मौजूद है, आप लेंगे या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नॉन स्ट्राइक एंड वाले चाह रहे हैं कि शायद ले या ना ले, अंपायर के पास जाएंगे नहीं, पीकू साहब ने कहा कि छोड़ देते हैं, मैं कहूंगा ना रिव्यू लेने के लिए। 1 रन और, अच्छी वापसी हो गई है। 4 ओवर हो चुके समाप्त है, 4 ओवर समाप्त, कुल स्कोर बना 36, अभी भी विकेट गवाए नहीं है, यानी एक अच्छी शुरुआत, सदीवी शुरुआत मानी जाएगी। आधी पारी हुई समाप्त है, 36 आपने बनाए हैं, विकेट अभी तक गवाए नहीं है। आने वाले बल्लेबाजों में कई ऐसे बल्लेबाज हैं जो आके अपना हिटिंग जोन दिखा सकते हैं। तो चलिए, कहीं ना कहीं एक बेहतरीन स्टार्ट यहाँ पे मिला है सागर अली और पीकू पॉल के द्वारा। 4 ओवर तक खेल चुके हैं, 24 गेंद का सामना दोनों ही बैटर मिलकर कर चुके हैं, और 36 रन, यानी कि अगर आप करंट रन रेट की बात करें तो एवरेज 9 करके पर ओवर रन आ रहा है। और अब टाइम शायद हो चुका है कि यहाँ से गियर को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले बैट्समैन की जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है।
तो काफ़ी सारे ऐसे बैट्समैन हैं, जैसे कि हलचल यादव की बात हम लोग कर रहे थे थोड़ी देर पहले। जब जब बंगाल की ज़मीन पे रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ मैच हुआ है, हलचल एक अलग रोल प्ले किए हैं अपनी टीम के लिए। 2 बार मैन ऑफ द मैच भी बन चुके हैं, तो काफ़ी उम्मीद उनसे भी है। 5वें ओवर, अन्नू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामने होंगे सागर अली। सामने गेंद फुलर लेंथ, बिल्कुल जड़ में, हल्के हाथों से खेले हैं, 1 रन। अन्नू का आगमन हो चुका है फिर से। टेम्पलेट सेट है। मुन्ना शेख का अच्छी कप्तानी देखने मिली अभी तक, सारे गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। अविनाश राणा कब आएंगे गेंदबाजी के लिए, वो भी सवाल रहेगा। उनका भी 1 ओवर बनता है। तो राजा सवाल ये भी है कि राज पासवान भी है डगआउट में, वो कब बैटिंग करने के लिए आएंगे क्योंकि इस टूर्नामेंट में हम लोग बहुत बार देखे हैं राज पासवान काफी बढ़िया बैटिंग किए हैं। How is that question to match official? And the final declaration is it's not out, 1 leg by. 38 पे 0। देखिए शुरुआत अभी अच्छी हो चुकी है। अब आपको यहाँ से वो ज़्यादा डिफेंसिव अगर खेलने गए ना, तो फिर ये इनके पास एक ऐसी गेंदबाजी यूनिट है जो आपको रोक देंगे। आपको रन बनाने पड़ेंगे और वो 5वां नंबर गियर अब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लगा दो 5वां नंबर गियर और फिर सीधा वो लोकल ट्रेन से बुलेट ट्रेन आपको बनना पड़ेगा, अन्यथा काफ़ी देर हो जाएगी। जी देखिए, इस मैच में कम से कम मेरे हिसाब से तो आपको 85 प्लस रन रखना चाहिए बोर्ड में, क्योंकि रेस्ट ऑफ इंडिया में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत आसानी से उससे नीचे अगर रन बनाएंगे तो चेज कर देंगे। उसी के प्रयास में गए थे, कैच पकड़ा है काजी साहब, फरदीन काजी। पूरे तरीके से डेडिकेशन इसमें दिखती है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें दिखती है, एक अच्छे फील्डर हैं। और अगर बल्लेबाजी आप 85 बता रहे थे, मेरे हिसाब से कम पड़ जाएगा 85 यार। कम से कम 90 प्लस या 100 बनाने पड़ेंगे इस टीम के सामने। अब फरदीन काजी को देख रहे हैं, मुन्ना शेख अच्छे फॉर्म में, संजू कनौजिया अच्छे फॉर्म में, साथ ही साथ दानी अच्छे फॉर्म में, विजय पावले अच्छे फॉर्म में, करण अंबाला मिडिल ऑर्डर में कमाल का तोड़ू बैटिंग करते हैं। तो फिर रन तो चाहिए आपको बोर्ड पे। और बातचीत चल रही थी कि कब राज पासवान आएंगे बैटिंग करने के लिए, हलचल यादव को कब भेजा जाएगा, लेकिन फिलहाल बैटिंग करने के लिए सरोज प्रामाणिक आ रहे हैं। तो ये भी एक ऐसे खिलाड़ी है इस टूर्नामेंट में हम लोग देखे हैं, जो मेन स्ट्रीम टूर्नामेंट हम लोग का चल रहा है। सरोज भी मैच विनिंग जो नॉक है वो बहुत बार हम लोग देख चुके हैं, काफी बड़ा बड़ा स्ट्रोक खेल सकते हैं। ये कप्तान साहब खुद आ गए हैं, शायद उनकी रणनीति अलग, वो चाह रहे हैं कि आके वो पिटाई कर दे, आके तेज गति के साथ पिटाई करे। जी बिल्कुल, और रन्नू के खिलाफ सरोज थोड़ा बहुत सक्सेसफुल है, इसीलिए शायद डगआउट से सरोज को भेजा गया है। देखिए, आपको प्लानिंग बनाना पड़ता है कि आपके सामने कौन है उस हिसाब से, और फिलहाल अन्नू होंगे सामने, तो इसीलिए शायद सरोज को भेजा गया है। फील्ड प्लेसिंग में थोड़ा बहुत परिवर्तन, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, एक्स्ट्रा कवर, फील्डर सर्कल से बाहर। काउ कॉर्नर एरिया में करण अंबाला खुद खड़े हैं, स्क्वायर लेग में भी फील्डर रखा गया है। लोअर फुल टॉस, जस्ट पेस को यूज किए हैं यहाँ पे सरोज, दिशा दिखाए हैं, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, जिस तरह से तेज भागे थे वहां पे फील्डर और पहुंच गए थे बल्कि बॉल के करीब। मात्र 39 रन बने हैं अभी तक। अगर देखिए 5 ओवर प्रगति बेस के बाद भी 3 ओवर बचेंगे। हलचल यादव को आप देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, वो थोड़ा सा चेयर अप कर रहे हैं अपनी टीम को। वो चेयर अप करना बनता है, मगर रन अभी भी कम है। अगर आप देखें स्कोर पर, अगर इस पिच पे देखा हमने, वो शुरू में रन बने या ना बने, अंतिम के 2-3 ओवर में रन बन ही जाते हैं। तो हलचल डगआउट से यही बोल रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल खोल के खेलिए, क्योंकि बाद में मेरा भी वाला है। पीकू बॉल हेलीकॉप्टर उड़ी है, लेकिन लैंडिंग फील्डर के हाथ। विश्वजीत ठाकुर थे मौजूद। विश्वजीत ठाकुर सेफ एंड साथ ही साथ करण अंबाला भी पहुंच चुके थे वही फील्डिंग के लिए। गंवाना पड़ा है दूसरा विकेट, यानी अब यहां पे आगमन किसका होगा। रन तो चाहिए आपको बोर्ड, विकेट के पीछे से अच्छी कप्तानी देखने मिली है मुन्ना शेख से।
देखिए या तो हलचल यादव आएंगे या फिर राज पासवान को भेजा जाएगा। डगआउट क्या सोच रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा। फिलहाल आपके दो ओपनर दोनों ही डगआउट में हैं। तो विजीत बेरा को भेजा जा रहा है, तो शायद ग्राउंड में लेफ्टी राइटी जो कॉम्बिनेशन है उसको फिर से एक बार बनाने के लिए अभिजीत बेरा को भेजा गया। और इस टूर्नामेंट में भी अभिजीत बेरा काफ़ी अच्छा बैटिंग किए हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब जब टीम की ज़रूरत पड़ी है तब तक अच्छे इनिंग्स खेल के दिए हैं। अभिजीत बेरा का आगमन हुआ है। अभी भी अगर देखिए बल्लेबाजी में काफ़ी डेथ गहराइयाँ मौजूद हैं, चाहे हलचल की बात करें या फिर अब बात करें राज पासवान की। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन शायद उसको बरकरार रखना चाहेंगे, सही कहा आपने। 39 पे 2, इसके बाद अभी भी 3 ओवर बचे हुए हैं। अच्छी तरीके से बांध दिया है अभी तक बंगाल स्टार्स को। जी बिल्कुल, रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम जिस तरह से हर एक बॉलर अच्छे बॉलिंग किए हैं, एक लाइन और लेंथ के साथ एक रिदम बना के रखे हैं अभी तक। पांच ओवर का खेल खत्म, 5 ओवर के बाद 40 रन, 2 विकेट। सरोज प्रामाणिक और अभिजीत बेरा दोनों बैटर फिलहाल अपने टीम को, बंगाल स्टार्स को लीड करने के लिए तैयार है। 5 ओवर खत्म हो चुका है। और अगर आप tenniscricket.in के कमेंट सेक्शन देखेंगे तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि क्या बंगाल कुछ कैजुअल खेल रहे हैं कि आखिर में रन हो जाएगा, यही सोच के अपने इनिंग्स को प्रोग्रेस में लेके जा रहे हैं। फाइनल बैटल, एक तरफ होंगे सरोज प्रामाणिक साथ ही साथ संजू कनौजिया, तो दूसरी तरफ होंगे पीकू पॉल और सुरेश भट्ट उर्फ दानी। साथ ही साथ मुन्ना शेख को आप देख सकते हैं, हलचल यादव को देखेंगे। एक ऐसा बैटल जो यादगार बनने को तैयार है। द मोस्ट अवेटेड डे इज हियर। तो ये देखिए, शुरू में लगा कि अंकित कल्की को फिर से एक बार लाया जाएगा, लेकिन करण अंबाला ने यहाँ पे बॉल को मांग लिए हैं। तो जेवीए ब्रदर्स एंड से करण अंबाला नए ओवर के साथ शुरू करेंगे। 6वां ओवर, सामने होंगे अभिजीत बेरा और नॉन स्ट्राइक एंड में सरोज प्रामाणिक। रन चाहिए बंगाल को क्योंकि 18 गेंद अब अवशेष है। क्या लग रहा है राजा, क्या होगा प्रिडिक्टेबल स्कोर? देखिए प्रेडिक्शन तो मैंने कई बार किया, मगर ये प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा टफ और डिफिकल्ट है क्योंकि इतने सारे गेंदबाज हैं और इस टीम के पास इतने सारे बल्लेबाज हैं। मुश्किल लग रहा है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि दिल बोल रहा है 80 पहुंच जाएगी स्कोर। 80 पहुंचना चाहिए, अगर 80 नहीं पहुंचेगी मुश्किल हो जाएगा। और आप सब जो देख रहे हैं हमारे tenniscricket.in पर, वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ जाएं और लिखें कि कौन सी टीम जीतेगी। प्लीज़ गो एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन। अभिजीत बेरा डगआउट से भेजा गया था बड़ा शॉट खेलने के लिए और कोशिश भी था यहाँ पे, लेकिन करण अंबाला सक्सेसफुल एक बार फिर से। तीसरा झटका लगता हुआ बंगाल स्टार्स को। अच्छा बदलाव, अभी तक राजू मुखिया नहीं आए गेंदबाजी के लिए। अभी तक विश्वजीत ठाकुर को आपने नहीं देखा है। अभी तक अविनाश राणा को आपने गेंदबाजी करते हुए नहीं देखा है। तो किस किस को देखोगे? 8 ओवर का ही तो गेम है, ये 20 ओवर का गेम नहीं है, ये भी तो सवाल है ना। फरदीन काजी भी गेंदबाजी करते, पार्ट टाइमर है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। मगर यहाँ 8 ओवर का ही गेम है। और लीजिए आपकी मुराद पूरी हो चुकी है, मैदान के अंदर आ चुके हैं राज पासवान। राज पासवान आए हैं, लेकिन राज पासवान कितने छाएंगे इसी के ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं बंगाल के फैंस, राज पासवान के फैंस। और बंगाल स्टार्स रन बनाना है, 40 पे रुके हुए हैं स्कोर बोर्ड, यहां से आगे जाना है। 3 विकेट गवा दिए हैं। बैटर तो है इनके पास, लेकिन रन बनाना पड़ेगा क्योंकि सामने भी दिग्गज खिलाड़ी हैं, दिग्गज बॉलर्स हैं।
अभी भी आप जो बात कह रहे थे कि राजू मुखिया को बॉलिंग करते हुए दिखा नहीं है, विश्वजीत ठाकुर खुद नहीं आए हैं, राणा अविनाश भी हैं, फरदीन काजी भी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो अगर ये टेस्ट मैच का हर्डल होता तो शायद थोड़ा बहुत आसान होता, क्योंकि हर बॉलर को आप यूज कर सकते थे। पासवान का आगमन हो चुका है, गेंदबाजी में तैयार है अंबाला। सिंगल लेके नॉन सेकंड पे जाएंगे और सरोज पुमानी को यहाँ अटैकिंग खेलना पड़ेगा। और ये बैटल सबसे मजेदार है मेरे हिसाब से, दो बेस्ट ऑलराउंडर ऑल ओवर इंडिया का आमने सामने है। एक तरफ सरोज पुमानी बल्लेबाजी के दौरान, एक तरफ गेंदबाजी के दौरान करण अंबाला। वो कई बार बातचीत भी होती है, सोशल मीडिया में हो या फिर कहीं पे भी बातचीत होती है कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई होगी, तब मालूम चलेगा बेस्ट कौन है। मेरे हिसाब से बेस्ट दोनों यार, दोनों बेस्ट है अपने दिन में। अब इस समय बेस्ट कौन होगा, ये सवाल आपके लिए, और आप मैदान पे आपको साबित हो जाएगा कि कौन बेस्ट है। फिलहाल यॉर्कर लेंथ, बैट को सफल किया है सरोज ने। पहला रन काफी तेजी के साथ और दूसरा रन भी कंप्लीट। तो पहले ही राजा इतना प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि ये प्रेस्टिजियस मैच है। उसके बाद अगर आप इस तरह की लाइन बोलते रहेंगे तो प्रेशर शायद दुगना होता जाएगा हर एक खिलाड़ी के लिए भी। लेकिन प्रेशर लेना भी है, क्योंकि हर कोई प्रोफेशनल लेवल से बिलोंग करते हैं, तो प्रेशर लेना है। किसी की आवाज आए ना आए, सबसे ज्यादा आवाज आएगी अविनाश राणा की। आवाज यहां से यहाँ, जैसे आवाज यहां कर रहे हैं वो सीधा पहुंच दिल्ली पहुंचा दे रहे हैं, इतनी जोर से आवाज आ रही है उनकी। जी बिल्कुल, चीयर अप करने में वो सबसे माहिर हैं, और जब जब ग्राउंड में वो रहते हैं उनका आवाज हर किसी को सुनने में आता है। अंबाला एक और रन, सिंगल। छठा ओवर प्रगति पे मात्र 44 ही बने हैं। ये रन तो चाहिए बोर्ड में, और रन आए नहीं है अभी तक उस हिसाब से जैसे आने चाहिए। थोड़ा सा चेकी शॉट खेलने का प्रयास, मगर एक ही रन। छह ओवर का खेल समाप्त हुआ। 6 ओवर के बाद 45 रन, 4 विकेट। तो मानिए रन जैसे बिल्कुल थम सी गई है, और यहां से आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ता दिखाना पड़ेगा। शाम के समय ये ग्राउंड व्यू, इतिहास रहा है इस ग्राउंड का। इस ग्राउंड पे आपने देखा इंडिया कप, वो तमाम इंडिया से खिलाड़ी यहाँ पहुंचे। काफी सारे यादें आपके जहन में अभी भी होगी। अनुभव सिंह का बैट टूटना हो, या फिर अंकुर सिंह की गेंदबाजी हो, फिर एक ओवर में फिनिश आपने देखा दीपक गढ़वी का। ये कई सारे ऐसे मेमोरीज आपके दिमाग में थी, वो खत्म हुई नहीं थी कि नया मेमोरीज आपको जोड़ने के लिए ये टूर्नामेंट रखा गया। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार टेनिस क्रिकेट में 6 टीम में सबसे बड़ी इनामी राशि लेकर लीग फॉर्मेट के सेलेक्टेड प्लेयर के साथ किया गया। तो कमाल है, हेड्स ऑफ ATS प्रेजेंस WBTCL ऑर्गेनाइज्ड बाय JBA ब्रदर्स। स्पेशल थैंक्स टू विजय अग्रवाल सर, जिन्होंने एक ऐसी सोच निकाली, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बंगाल के सारे सितारों के लिए या फिर बंगाल के यंगस्टर्स के लिए दिया,
जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ से आने वाले जो समय है उन पे वो परफॉर्म करते नजर आएंगे। राजा, काफी सारे दर्शक ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से लेदर बॉल क्रिकेट में आप ईडन गार्डन्स को देखते हैं, विजय अग्रवाल जी ने गुलमोहर के इस ग्राउंड को फिलहाल टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए ईडन गार्डन्स बना दिए हैं। काफी अच्छा ग्राउंड है, टेनिस क्रिकेट में इतना आसान होता नहीं है ऐसे ग्राउंड्स मिलना। वैसा ही लग रहा है ये व्यू, बिल्कुल वैसा ही व्यू, वैसा ही एटमोस्फियर और फीलिंग्स भी कुछ खास वैसा ही। क्रिकेट का एक्साइटमेंट तो है और साथ ही साथ पूरा बंगाल क्या पूरा इंडिया इस वक्त जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ ये मैच को लेके। क्या बेहतरीन स्लोवर, बिल्कुल पढ़ नहीं पाए जॉन्टी सरकार। आगे तो निकल के आए थे, लेंथ के करीब पहुंचना चाहते थे, लेकिन कुछ खास फायदा हुआ नहीं। इसके बाद भी एक ओवर का खेल बचेगा, क्या उस ओवर के टारगेट के लिए रुके हुए हैं? शॉट तो कड़क है, शॉट कड़क है, अच्छा थ्रो था अविनाश राणा का। अब आखिरी ओवर डालेगा कौन? ऑप्शंस इसके पास है कि एक एक बॉल भी सारे गेंदबाज डाले ना तो फिर नए गेंदबाज ही मिल जाएंगे, इतने गेंदबाज इस टीम के पास है। तो देखिए राजा, रुके कोई नहीं है, कोशिश तो कर रहे हैं बंगाल के बैटर्स कि बड़ा स्ट्रोक लाया जाए, लेकिन बॉलर्स इतनी अच्छी तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, बॉल इतनी अच्छी तरह से डाल रहे हैं, और लीजिए मुंह का बात मुंह में ही रह गया। शांत नहीं रख सकते हैं जॉन्टी साहब को, वो थोड़ा देर शांत थे मगर शांत ये कब तक रहेंगे? बीच मैदान में आए हैं संकट मोचन बनकर, तो पिटाई करने को तैयार रहेंगे। ये पहला सिक्सर आया है, वो दे रहे हैं, क्या दुरुस्त भी आ पाएगा? रन चाहिए बोर्ड पे। कुल स्कोर बना है 54। अभी भी 2 गेंदें बची है इस ओवर की, 2 में 1 आएगा क्या? ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। एक और अतिरिक्त रन, जब रन आने लगते हैं ऐसा लगता है कि आ सकती है और भी आ जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए एक बार आपको कोशिश करना पड़ेगी, और जैसे ही छक्का आया देखिए थोड़ा बहुत रिदम जो है वो बिगड़ा है, वाइड बॉल मिला है पिछले बॉल से, 1 रन एक्स्ट्रा के खाते में जुड़े हैं। अगला बॉल फिर से एक बार कोशिश तो वही रहेगी जॉन्टी की तरफ से कि छक्का आए, बड़ा स्ट्रोक आए। इस बार डी पॉइंट की तरफ 1 रन काफी तेजी के साथ, और 1 ही रन मिलेगा। आखिरी बॉल इस ओवर की 6, 56 पे 4 है। एक और वाइड बॉल, थोड़ी सी बाहर थी ऑफ स्टंप के। 4 है अभी, इसके बाद 7 गेंदें, 7 लीगल डिलीवरी बची हुई है। एक और वाइड बॉल, वो जब से वो 6 रन लगा ना तब से उनका जो रिदम है थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, वो बाहर डालने का प्रयास कर रहे हैं। अविनाश राणा करेंगे तो बस तू डाल दे। हलचल यादव के जुबानी अगर आप कहेंगे कि तू क्या करेगा तो बस वो कहेंगे तू डाल दे बस। अब डालना कहा है वो नहीं मालूम है, तो डाल दे बस। डाला भी है, क्या बचा पाएंगे? अच्छा क्षेत्र रक्षण, विजय पावले अब पहुंच पाए या नहीं ये भी सवाल रहेगा। अंपायर ने बिल्कुल अंगुली खड़ी कर दी, नहीं जाना पड़ेगा बाहर। दूर रह गए राज पासवान, शायद जिस गेंद से एक्सपेक्टेशन थी कि बाउंड्री मिलने वाला है वहीं से रन आउट होकर लौटना पड़ रहा है, और काफी बढ़िया फील्डिंग वहां पे विजय पावले की, खास करके उनकी फिटनेस की तारीफ करना पड़ेगा राजा आपको, किस तरह से इतना दूर दौड़ के गए, फिर गेंद को पकड़ते ही तुरंत थ्रो किए। 59 पे 5। अब नए बल्लेबाज का आगमन, यानी कौन नए बल्लेबाज आएंगे सवाल तो ये भी रहेगा आखिरी 6 गेंदों के लिए। आखिरी 6 गेंद बाकी है। बंगाल स्टार्स कम से कम 2 या 3 बड़ा स्ट्रोक्स तो चाहिए उनको फाइट करने के लिए, बॉलर्स के लिए कुछ इस मैच में बचा के रखने के लिए।
बैटिंग करने के लिए सकलीन को भेजा गया है। तो क्राइसिस मैन है, जब जब टीम की ज़रूरत होती है तब तक सकलेन आते हैं, चाहे वो बॉलिंग करने के लिए हो चाहे वो बैटिंग करने के लिए हो। अपना फ्लो अपना रिदम दिखा के जाते हैं, अपना दम खम लगा के टीम के लिए कंट्रीब्यूशन छोड़ के जाते हैं। आखिरी 6 गेंद बचा हुआ, जॉन्टी सरकार एक तरफ रहेंगे तो दूसरी तरफ सकलेन अख्तर। और आखिरी ओवर राजू मुखिया को लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। आखिरी 6 गेंद, कितना रन बंगाल स्टार्स यहां से बना पाएंगे। जिस तरह से शुरुआत दिखने को मिला, फिनिशिंग क्या उस गति से दिखने को मिलेगा। शुरुआत तो अच्छी हुई थी लेकिन बीच के कुछ ओवर बढ़िया बॉलिंग दिखने को मिला जहां से बंगाल स्टार्स अपना विकेट भी खोए और रन जो एक्सपेक्टेशन था उसके करीब पहुंच नहीं पाए। राजू मुखिया एक और इम्पोर्टेंट गेंदबाज, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, पर इस सिचुएशन के लिए बेहतर है, इस सिचुएशन के लिए बेहतर है। अब कितनी दूर भेजा है, इनसाइड आउट, 1 बाउंस, 1-2 नहीं, सीधा ये बाउंड्री पर 4 रन। 4 रन के साथ स्कोर में हो गया इजाफा, स्कोर पहुंच गए 63 रन। क्राइसिस मैन मैदान के अंदर मौजूद है, मगर एक तरफ आप देख सकते हैं 1 मैन आर्मी भी खड़ा है। जी बिल्कुल, और रोल भी कुछ वैसा ही अदा करना पड़ेगा यहाँ पे जॉन्टी सरकार को, क्योंकि आखिरी ओवर का खेल जब चल रहा है और 5 गेंद बाकी है, आप स्ट्राइक पे हैं तो आपको हर गेंद में कुछ ना कुछ हरकत करना पड़ेगा। रन चाहिए बोर्ड में। पकड़ लिए थे राजू, बहुत पहले ही पकड़ लिए थे कि स्टेप आउट होने वाला है, तो गेंद की लेंथ को थोड़ा छोटा किया। चालाक गेंदबाज है ये, चतुर, चालाक, चतुराई, सारे चीजों का गुण इनके अंदर मौजूद है। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब स्ट्राइक पे आएंगे छोटे उस्ताद। राजा पहले गेंद पे जिस तरह से बाउंड्री आया, लगा कि ये ओवर बड़ा ओवर होने जा रहा है, कम से कम 12-15 रन इस ओवर से आने वाला है। लेकिन उसके बाद राजू मुखिया ने जिस तरह से कमबैक किए हैं, मात्र बाकी 2 गेंदों से 1 ही रन, यानी कि 3 गेंदों से अभी तक 5 रन बंगाल स्टार के बैटर्स बना पाए हैं। एक बार फिर से छकाया है। वो बड़े उस्ताद तो परेशान थे, छोटे उस्ताद भी परेशान है। रन कम से कम चाहिए था, वो 80 उसके करीब तो आप पहुंचे नहीं है। एक बाउंड्री अगर आ गई तो 70-75 तक पहुंच सकते हैं। 2 गेंद बची हुई है आपके पास। 2 गेंद बची हुई है और इस 2 गेंद से कम एक बड़ा स्ट्रोक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं बंगाल के फैंस। जॉन्टी सरकार, टाइमिंग बढ़िया, फुल टॉस गेंद, मौके का फायदा उठाए और छक्का। जब कोई ना चले तो फिर बीच मैदान में जॉन्टी एक नाम होता है, वो चलते हैं, चाहे गेंदबाजी में हो बल्लेबाजी में हो, उनका नाम हमेशा या फिर उनका बोलबाला हमेशा रहता है। और वो एक बार नहीं कई बार करके दिखाते हैं। वो चीज फिर से एक बार देखता हुआ बीच मैदान में। तो जॉन्टी इनबॉर्न लीडर है, सामने से लीड करना उनको पसंद है। और देखिए जब भी टीम क्राइसिस में रहते हैं तो जॉन्टी भी अपना बैट या बॉल अपना परफॉर्मेंस देके जाते हैं। हालांकि आखिरी गेंद थोड़ा बहुत स्लोवर, पड़ नहीं पाए ठीक से। 1 ही रन लेग बाई के द्वारा। और चलिए पहले इनिंग्स की समाप्ति। पहले इनिंग्स के बाद 72, लॉस्ट ऑफ 5, दैट मींस रेस्ट ऑफ इंडिया उनके लिए टारगेट 73। तो राजा जो प्रेडिक्शन था मेरा कि 80, तो वहां तक भी तो अब टीम पहुंच नहीं पाया। और आप बोल रहे थे कि 80 रन बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है नहीं रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए, तो क्या कहेंगे 72 स्कोर्स को? देखिए मुश्किल है ये इस स्कोर पर डिफेंड करना, मगर जिस तरीके से गेंदबाजी बंगाल के पास भी मौजूद है, चाहे दिवाकर ज्ञान के रूप में हो, सुमित कर्मकार ने अच्छी गेंदबाजी की है, कई सारे ऐसे गेंदबाज हैं जो आप कह सकते हैं। और वहीं अगर बैटिंग समझे की बात करें, जिस तरीके से बैटिंग सागर अली को देखें, 11 गेंदे 11 रन। पिकू पॉल 24 रन, 17 गेंदे, इन्होंने शुरुआत अच्छी की थी। सरोज प्रमाणिक 3 गेंदों पे 3 रन। अभिजीत बेरा 2 पे 1, राज पासवान 5 पे 5, 9 पे 20। जॉन्टी सरकार यहाँ खेल गया अच्छी तरीके से पारू। और सकलेन कुछ खास नहीं, एक ही बॉल का सामना किया था।
और बॉलिंग समरी की आप बात करेंगे अनुराग चार सर, इन्होंने की है 2 ओवर गेंदबाजी, 15 रन देके 2 विकेट इनके नाम है। अंकित कल की 2 ओवर का इनका स्पेल रहा था, 20 रन ये खर्च किए हैं 10 के इकोनॉमी रेट से। वहीं करण अंबाला 2 ओवर ये डाले हैं, 2 विकेट इनके नाम है 7 के एवरेज से। विजय पावले ने की है 1 ओवर गेंदबाजी, 3 विकेट इनके खाते में आई नहीं है। राजू मुखिया 1 ओवर में 11 रन, इनके खाते विकेट नहीं आई है। और स्क्रीन पर आप देखिए इतने रन चाहिए, यानी 73 रनों की जरूरत है। 48 गेंदें 73 रन। अब यहां से कॉम बॉक्स में हो बदलाव, आप सबके साथ जुड़ेंगे अफाबुल अंसारी जी और साथ ही साथ रोबिदा। थैंक यू राजा, नमस्कार, सलाम, फिर से एक बार स्वागत आप सभी का। जितने भी क्रिकेट प्रेमी इस वक्त देख रहे हैं आप ATS प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल टेनिस क्रिकेट लीग। हेलो हेलो। नेक्स्ट मैच मेगा फाइनल बैटल बिटवीन टू टीम्स, ADS हावड़ा कैप्टन सुरेश भट्ट की अगुवाई में और एक तरफ कोलकाता राइडर्स कैप्टन संजू कनौजिया। आपके स्क्रीन पर दोनों टीम तैयार होंगे इस मैच के बाद फाइनल बैटल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद JB ब्रदर्स, मिस्टर विजय अग्रवाल जी, पूरी यूनिट। এটা সময় ফেলিসিটেশনের জন্য আমরা স্বাগত জানাবো মিস্টার রোহিত আগরওয়াল জিকে। আমাদের প্রেজেন্টেশন এরিনাতে আমরা ওয়েলকাম জানাচ্ছি मिस्टर रोहित अग्रवाल जी, তিনি আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন। सो हार्दिक स्वागत है रोहित अग्रवाल जी और स्वागत है विजय अग्रवाल जी। द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द टूर्नामेंट मिस्टर विजय अग्रवाल, आपसे अनुरोध है कि आप आइए हमारे साथ प्रेजेंटेशन एरिना में। इट्स टाइम फॉर फेलिसिटेशन। सो and may I request to you Mr. Niaz Khan, please come and join with us. Owner of Young Bengal Niaz 11, Mr. Niaz Khan. So हार्दिक स्वागत है मिस्टर रोहित अग्रवाल जी एंड मिस्टर नियाज खान, ओनर ऑफ यंग बंगाल। हम लोग फेलिसिटेट करेंगे मिस्टर नियाज खान को, फेलिसिटेट कर रहे हैं हमारे मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द टूर्नामेंट मिस्टर विजय अग्रवाल। मिस्टर नियाज खान प्रेजेंट हियर और हम लोग संबर्धित कर रहे हैं WTCL की ओर से द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द टूर्नामेंट मिस्टर विजय अग्रवाल जी। কেমন অনুভূতি হচ্ছে WTCL এ এসে? दुर्दांत একটা পরিবেশ, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर जो महल बनाया गया WTCL के लिए JBA ब्रदर्स के द्वारा बंगाल क्रिकेट के लिए, कैसा कुछ देख रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे पहले इंडिया कप हुआ था यहाँ पे और इस बार JB ब्रदर्स बहुत ही अच्छा ये ऑर्गेनाइज जो किए हैं विजय अग्रवाल सर। तो ये एक बंगाल के जितने भी प्लेयर है, यंग प्लेयर, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। तो ये या विजय सर का बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा सोच है। और इसी तरह अगर यहाँ पे लीग मैच कराया जाए तो यहाँ जितने भी बंगाल के प्लेयर हैं सभी को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नियाज खान सर। एंड नाउ मे आई रिक्वेस्ट टू यू मिस्टर मोहित अग्रवाल जी, प्लीज कम। मिस्टर रोहित अग्रवाल जी प्लीज कम। हार्दिक स्वागत है मिस्टर रोहित अग्रवाल जी और फेलिसिटेट करने के लिए हार्दिक स्वागत है मिस्टर विजय अग्रवाल जी। सो हार्दिक स्वागत है मिस्टर रोहित अग्रवाल जी। हम लोग फेलिसिटेट करेंगे आपको। WBTCL वेस्ट बंगाल टेनिस क्रिकेट लीग जो ऑर्गेनाइज किया JBA ब्रदर्स, मिस्टर विजय अग्रवाल जी वो प्रेजेंट करेंगे मोमेंटो। सो प्लीज वेलकम मिस्टर रोहित अग्रवाल जी। हार्दिक स्वागत है वेस्ट बंगाल टेनिस क्रिकेट लीग पर मिस्टर रोहित अग्रवाल जी। और मोमेंटो के साथ संबर्धित कर रहे हैं यहाँ पर द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द टूर्नामेंट मिस्टर विजय अग्रवाल। स्प्लेंडेड एटमॉस्फेयर सर, प्लीज से फ्यू वर्ड्स अबाउट द टूर्नामेंट। कैसा लगा ये टूर्नामेंट, कैसा महल? अरे ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। আমরা আবারও ফিরছি কমেন্ট বক্সে। थैंक यू समरेश दा।
नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं इस वक्त एग्जीबिशन मैच, दो टीम, एक तरफ वेस्ट बंगाल स्टार और एक तरफ रेस्ट ऑफ इंडिया। दोनों टीम की अगर बात की जाए, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था रेस्ट ऑफ इंडिया। पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया वेस्ट बंगाल स्टार को और शुरुआत में आए थे बैटिंग करने सागर अली, साथ में पीकू पॉल। सागर अली 11 बॉल से 11, पीकू 17 बॉल से 24, सरोज 3 बॉल से 3 रन, अभिजीत बेरा 2 बॉल से 1 रन, राज पासवान 5 बॉल से 5 रन, जॉन्टी 9 बॉल से 20, नवाद रहे, सकलेन कोई रन नहीं। और अगर बॉलिंग की बात की जाए, अनुराग सरसर 2 ओवर 15 रन 2 विकेट, अंकित कल्की 2 ओवर 20 रन कोई विकेट नहीं, करण अंबाला 2 ओवर 14 रन 2 विकेट, विजय पावले 1 ओवर 8 रन कोई विकेट नहीं, राजू मुखिया आखिरी ओवर 11 रन कोई विकेट नहीं। तो जीत के लिए चाहिए 8 ओवर में 73 रन। सलामी बल्लेबाज एक तरफ मुन्ना शेख और साथ में फरदीन काजी। कमेंट्री बॉक्स में वेलकम रबिदा। रबिदा, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अफापुल। जैसे कि आज की शाम सिर्फ वेस्ट बंगाल टेनिस क्रिकेट के नाम में होगा, जेवीए ब्रदर्स के नाम में होगा, तो ये बंगाल की सम्मान का लड़ाई है, आपको लड़ाई करना होगा। लेकिन सबसे पहले ये सवाल होता है कि पीकू के साथ राज पासवान या हलचल को तो आना चाहिए था। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हलचल राज पासवान थोड़ा ऊपर आते तो शायद रन जो आप देख रहे हैं 72 वो थोड़ा और अधिक हो सकता था। लेकिन क्रिकेट है, हर दिन आपके लिए सही जाएगा नहीं, अप एंड डाउन होंगे। सरोज तैयार बॉलिंग करने के लिए स्ट्राइक पे फरदीन काजी, नॉन सेकंड पे मुन्ना शेख। लेकिन हर खिलाड़ी जानते हैं कि ये मैच बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि बंगाल के लिए सम्मान है। पहली बॉल काफी दूर से खेलने का प्रयास, फील्डर मौजूद थे, रन आए नहीं पहली बॉल से। पहली बॉल डॉट बॉल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। ये देखिए पहले अब स्टंप के बाहर रखा था, बल्लेबाज को कोई रूम भी नहीं मिला, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी रोका है, जो कि एक गेंद के बाद कोई रन नहीं। फिर से एक बार तैयार सरोज, काफी दूर से खेला, फिर से फील्डर मौजूद है डीप पॉइंट पे, आसान सा मौका और लीजिए, कोई गलती नहीं। फर्स्ट बॉल डॉट बॉल, सेकंड बॉल विकेट, वापस जाएंगे फरदीन काजी, विकेट नंबर 1। और सरज वो चाह रहे थे कि अब स्टंप के बाहर डाले, फरदीन काजी शॉट खेले, जैसे कि डीप पॉइंट जो फील्डर रखा था वो देखा ही नहीं, जैसे कि गलत शॉट खेले बैठे और यहाँ कैच पहुंचे फील्डर के पास और पहला झटका पहले ओवर में। बहुत अच्छी गेंदबाजी सरोज, जो टोटल है उसके लिए आपको विकेट हर अंतराल पे लेते रहना होगा और शुरुआती ओवर में आते ही दूसरी बॉल में विकेट। और फील्डर शायद संटू खालसा थे वहां पे, कोई गलती नहीं, कैच को पूरा किया, फर्स्ट विकेट डाउन। काफी मजा आ गया ये विकेट लेने के बाद। सेलिब्रेशन देखिए, सरोज प्रामाणिक का सेलिब्रेशन, पूरे बंगाल के खिलाड़ी का सेलिब्रेशन। जानते हैं कि रेस्ट ऑफ इंडिया और बेस्ट ऑफ बंगाल के बीच में ये मुकाबला। देखिए अभी भी 6000 के लोग हमारे साथ जुड़े हैं tenniscricket.in पर, देख रहे हैं कि बंगाल से बाहर काफी लोग, बंगाल से बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी ये मैच का लोग उठा रहे। बैटिंग लिए हमारे सुरेश भट्ट दानी, बिल्कुल रविदा, काफी लोग आनंद ले रहे इस मैच को देखकर। जिस तरह से मैच रहा अभी तक, सारे लीग के मैचेस अगर आप याद करें, ये मुकाबला सबसे अलग है। एक तरफ रेस्ट ऑफ इंडिया, एक तरफ वेस्ट बंगाल स्टार। और जैसे गेंदबाजी सरोज प्रामाणिक को विकेट मिला तो थोड़ा दबाव में होंगे, क्योंकि बैटिंग लाइन की बात करें, काफ़ी लंबे और गहरी बैटिंग लाइनअप है। और जैसे संजू कनौजिया है, अब आप ही चुके हैं। दानिया बैटिंग करने के लिए पहली बॉल आती हल्के हाथों से डिफेंस किया और रन के लिए भाग पड़े हैं, सिंगल आसानी से प्राप्त करते हुए। जैसे बैटिंग की हम बात कर रहे थे, संजू कनौजिया है, करण अंबाला है और सारे से सारे बल्लेबाज रेस्ट ऑफ इंडिया की भी है। जी हाँ, बिल्कुल रविदा, बैटिंग लाइन बहुत लंबा है दोनों टीम की, पिछले पारी में हम लोगों ने देखा था। और अब स्ट्राइक में मुन्ना शेख बहुत अच्छे फॉर्म में पूरे लीग में अगर देखा जाए, इनकी बैटिंग जिस तरह से रही एडीएस हावड़ा के लिए, फिलहाल इस मैच में रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए। और इसके बाद आज का आखिरी मैच, फाइनल मैच, चैंपियन बनने का मैच। उठाकर खेला मुन्ना शेख, हवा में बॉल है, फील्डर पीछे भागे, मौका बन सकता है, जी नहीं, निकल जाएगी बार, मिलेंगे पूरे 6 रन। और जैसे पावर प्ले चल रहा है और मुन्ना शेख चाह रहे थे कि लंबा हिट खेले, जैसे मिड ऑफ और मिड ऑन अंदर था और फिर थोड़ा जोरदार शॉट खेले।
बिल्कुल रविदा, पावर प्ले में ऐसे शॉट आपको देखने को मिलेंगे, खासतौर पर जब मुन्ना शेख बैटिंग करते हैं, हर तरफ इनकी शॉट रहती है। अगली बॉल के लिए चल पड़े फिर से एक बार सरोज, कट करने का प्रयास, थोड़ी सी बॉल लो रही पिछले बॉल की तुलना में, सीधे कीपर के हाथों में, जॉन्टी विकेट के पीछे, कोई रन नहीं इस बॉल से। सरोज प्रामाणिक की पहले ओवर अभी तक बहुत अच्छी रही, जो कि आखिरी जो बॉल था देखिए जहां पड़ने के बाद कितने बाहर की तरफ निकली, बल्लेबाज सोच नहीं पाए थे। और इसी बीच हमारे बीच मौजूद है मिस्टर विनय भुतोड़िया जी, संजय तपाड़िया जी, दिनेश बिनानी जी एंड राजेश चौराडिया जी। हार्दिक स्वागत है WTCL वेस्ट बंगाल टेनिस क्रिकेट लीग पर गुलमोहर ग्राउंड में। आखिरी बॉल से कोई रन नहीं, ओवर की समाप्ति, पहले ओवर से 7, 1 विकेट रेस्ट ऑफ इंडिया। बहुत अच्छी शुरुआत वेस्ट बंगाल स्टार के लिए, पहले ओवर में विकेट सरोज ने चलता किया फरदीन काजी को। बंगाल की बात करें, पहले ओवर में 12 रन, कोई विकेट नहीं था, लेकिन काफी आगे था बंगाल। लेकिन यहाँ रेस्ट ऑफ इंडिया को 1 विकेट गिरा, जैसे कि 1 विकेट के नुकसान हो चुका है। अच्छी ओवर रही और आखिरी 2 बॉल बहुत ही फाइन के, कितने डिसिप्लिन के साथ। सो और हम लोग सम्मानित करेंगे हमारे प्रेजेंटेशन एरिया में हमारे ऑनरेबल गेस्ट मिस्टर विनय भुतोड़िया जी, मिस्टर संजय तपाड़िया जी, मिस्टर दिनेश बिनानी जी एंड मिस्टर राजेश चौराडिया जी। मिस्टर विजय अग्रवाल, द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द टूर्नामेंट, फेलिसिटेट करेंगे हमारे मोमेंटो देकर। WBTCL वेस्ट बंगाल टेनिस क्रिकेट लीग मोमेंटो देकर हम लोग संबर्धित कर रहे हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट मिस्टर विनय भुतोड़िया जी, मिस्टर संजय तपाड़िया जी, मिस्टर दिनेश बिनानी जी एंड मिस्टर राजेश चौराडिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोग आए हैं इस टूर्नामेंट में। थैंक्स फ्रॉम JVA ब्रदर्स। सर कुछ बोलिए, जिस तरह की यहाँ पर महल इस टूर्नामेंट WTCL पूरे स्टेट से खिलाड़ी खेल रहे हैं और बाहर से भी, हर टीम में 2 खिलाड़ी, सब कुछ मिलाकर बंगाल टेनिस क्रिकेट के लिए एक अलग सा महल बनाए JVA ब्रदर्स। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। JVA ब्रदर्स द्वारा ऑर्गेनाइज ये टूर्नामेंट बहुत ही शानदार तरीके से हो रहा है और देख के बहुत ही आनंद आ रहा है, और आगे के लिए भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सर। बैक टू कम बॉक्स। थैंक यू समरेश दा। दूसरे ओवर की शुरुआत करने के लिए आए टप्पू दास, पहली बॉल सिंगल, स्कोर बढ़ता हुआ 8, 1 विकेट। सामने मुन्ना शेख, क्या बेहतरीन बॉलिंग है, यो मिसाइल हिट, चलता किया सेट बैटल मुन्ना शेख को, विकेट नंबर 2, बिग मैन डिपार्ट, सफलता दिलाया टप्पू दास। रविदा, बहुत ही फाइन गेम, जिस समय विकेट चाहिए था, जो कि पहले दबाव देना चाहिए था, वहां पर टप्पू आए और टप्पू को विकेट मिला। और जैसे हम बात कर रहे थे कि 73 रन की जो टारगेट है उतने छोटा नहीं लगता है, कि यहाँ पर आप देखिए जिस तरह से 2 विकेट गिरा है, आप लगता है कि काफी बड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जब आप विकेट लेंगे हर अंतराल पे तो कोई भी टोटल आपके कम कहा नहीं जा सकता है। और दीपांजन दास, टप्पू, क्या कहना, आते विकेट इस ओवर में, और ड्रोन व्यू के माध्यम से इस वक्त देख रहे हैं क्या बेहतरीन कैमरा वर्क। टेनिस के .in बहुत अच्छा काम करते हैं पूरे भारत में, टेनिस क्रिकेट की जो परिभाषा उन्होंने बदल दिया है। अभी तक 8 रन 2 विकेट, बैटिंग के लिए आ रहे हैं संजू कनौजिया, एक और लेफ्टी बैटर रविदा, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो प्लानिंग है, पहले मुन्ना शेख वो आउट हुए, अब संजू कनौजिया बैटिंग करेंगे। और लेफ्ट राइट जो कॉम्बिनेशन है, और इसलिए संजू कनौजिया आए। टप्पू, पूरे टूर्नामेंट की बात करें, टप्पू की गेंदबाजी जिस तरह से रही, हर मैच में जिस तरह से अपने डिसिप्लिन दिखाई, अपने गेंदबाजी में बहुत ही फाइन किए, और मुझे लग रहा कि आज विकेट लेने के बाद उनका उत्साह भी काफी बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल रविदा, विकेट हर मैच में निकाले वो अपने टीम के लिए। अब सामने फेस करेंगे संजू कनौजिया, चल पड़े टप्पू। पहली बॉल हल्के हाथों से खेला सिंगल के लिए और अच्छा रिस्पॉन्ड किया दानी, एक दूसरे को सही वक्त पे अंदर पहुंचे सिंगल पूरा करते हुए। और पावर प्ले में 2 विकेट गिरने के बाद जैसे देखा कि पावर प्ले में थोड़ा पावर दिखा रहे थे, लेकिन 2 विकेट गिरने के बाद थोड़ा दबाव में है रेस्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ, दबाव कह सकते हैं आप, क्योंकि शुरुआती विकेट अगर आप गवाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है आने वाले बैटर के लिए, वो समय फिर ढूंढेंगे, फिर वो समय बिताना चाहेंगे। सामने तैयार दानी, चल पड़े टप्पू। मिस टाइमिंग हवा में है, कीपर जॉन्टी सरकार, कोई गलती नहीं, एक और
सेफ कैच, विकेट नंबर 3, वापस आएंगे सुरेश भट्टानी, निराश होंगे रेस्ट ऑफ इंडिया। और जिस तरह से तोपू की जो सेलिब्रेशन है, ये देखिए बहुत ही फाइन सेलिब्रेशन। बंगाल के लिए 3 विकेट, वो भी 3 मूल्यवान विकेट, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए। और 1.4 ओवर अभी भी पावर प्ले समाप्त नहीं हुआ। देखिए 9 पर 3 विकेट, इससे ज्यादा बेहतर क्या शुरुआत हो सकता है। लगातार विकेट गंवा रहे, 1 ओवर 4 बॉल 9 रन 3 विकेट। रेस्ट ऑफ इंडिया बैटिंग के लिए बाहर है विश्वजीत ठाकुर। एक तरफ विश्वजीत ठाकुर, साथ में होंगे संजू कनुजिया, दोनों पार्टनरशिप बनाएंगे। अब तारीफ कर रहे होंगे, पहले सरोज, उसके बाद टिप्पू दास। आते ही विकेट निकाल रहे दोनों गेंदबाज। टीम का स्कोर अभी तक मात्र 9 रन 3 विकेट। सामने तैयार विश्वजीत ठाकुर, टारगेट 73 चाहिए जीतने के लिए। ठाकुर तैयार स्ट्राइक पे, सामना करेंगे। कौन जीतेंगे, वेस्ट बंगाल स्टार या फिर रेस्ट ऑफ इंडिया? पहली बॉल आते ही थोड़ा सा टाइम में लेना चाहेंगे ठाकुर। कुरन इस बॉल से 1 ओवर 5 बॉल 9 रन 3 विकेट। जॉन्टी विकेट के पीछे लगातार फील्डिंग में कुछ परिवर्तन चाह रहे हैं। पॉइंट में सागर को, सकलिन को बुलाया पॉइंट में। शॉट ऑफ डिलीवरी अपील हुई जरूर, पैर पे बॉल लगी थी, लेकिन अंपायर ने कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं। कुरन इस बॉल से ओवर की समाप्ति, सफल ओवर। 2 ओवर से 9 रन 3 विकेट। 9 4 3 आफ्टर एंड ऑफ 2 ओवर्स। पहले ओवर से आए 7 रन, इस ओवर से आए मात्र 2 रन। बेहतरीन ओवर टप्पू। दबाव जरूर होगा अब रेस्ट ऑफ इंडिया के ऊपर, क्योंकि शुरुआत जो चाहिए था वो मिला नहीं। बॉलिंग में अब बढ़ रहा है शुभ्रनील रॉय, होल्डर बॉलिंग करेंगे 30वां ओवर। और पावर प्ले में देखिए जिस तरह से दोनों गेंदबाजों ने पावर किया है, जिस तरह से अपने विकेट लिया है। पहले ओवर में सरोज ने विकेट लिया और उसके बाद तोपू ने 2 विकेट लिया। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत रही वेस्ट बंगाल के लिए। और अभी भी 6 ओवर का खेल बाकी, जो टारगेट है 73, लेकिन 2 ओवर के बाद तुलना करें वेस्ट बंगाल के लिए तो पहले 2 ओवर में 18 था, जो कि विदाउट लॉस, जो कि पहले 2 ओवर में, लेकिन 3 विकेट खो चुके हैं वेस्ट ऑफ इंडिया ने। रविदा, जो हम लोग कह रहे थे कि बैटिंग ऑर्डर में क्या कुछ गलती हुई वेस्ट बंगाल स्टार, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद रन बनाना मुश्किल है पिच पे, और इसी कारण वो बैटिंग ऑर्डर था पिछले पारी में वेस्ट बंगाल स्टार के लिए। तो टीम मैनेजमेंट, टीम कैप्टन काफी अलग सोचते हैं और टीम के लिए अच्छा सोचते हैं। तो ये साफ नजर आ रहा है इस पारी में, क्योंकि मुन्ना शेख आए, वो भी जल्दी आउट हुए। 2 विकेट जल्दी गवा बैठे, पहले फरदीन काजी फिर मुन्ना शेख, दोनों सलामी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। और इस वक्त देखिए आप चारों ओर बहुत सारे लोग आए देखने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यार दिया आप लोगों ने गुलमोहर क्रिकेट ग्राउंड पे, जो लगातार आप पहले दिन से जुड़े हुए हैं। बॉलिंग के लिए बुलाया अब शुभ्रनील रॉय, होल्डर बॉलिंग करेंगे। सामने होंगे संजू कनुजिया। फर्स्ट बॉल सटीक लेंथ है, सटीक लेंथ, पहली बॉल जड़ में करने का प्रयास संजू। कोरन्नी पहली बॉल से। और शुभ्रनील ऐसे गेंदबाज है जो कि तेज बॉल डालते हैं, तेज के साथ भी दोनों तरफ से काटा डालते हैं। और पहले 2 ओवर में जब विकेट मिला है 2 गेंदबाज को, मुझे जान रहा है कि यहाँ पर चाहेंगे कि शुभ्रनील इस ओवर में भी उनको विकेट मिले। अच्छी कोशिश, अच्छी कोशिश से डी पॉइंट पे फील्डर मौजूद है। संजू कनुजिया एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बाउंड्री हर तरफ लगा सकते हैं, बाउंड्री पर बाउंड्री जो भी हो, या फिर सिंगल, यानी हर दिशा में वो खेल सकते हैं। उनकी जो बैटिंग शैली काफ़ी अच्छे तरीके से वो खेलते हैं
अभी तक 10 रन रविदा। दबाव क्या दिख रहा है रविदा? एक बड़ा ओवर ढूंढेंगे अब रेस्ट ऑफ इंडिया। और जरूर रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए एक बड़ा ओवर चाहिए, वो चाहेंगे कि क्योंकि अभी भी इसके बाद 5 ओवर का खेल बाकी है। सोचना होगा बल्लेबाज को, जो कि आपके पास 3 विकेट गिर चुका है, लेकिन अभी भी बहुत नाटक बाकी है इस मैच में। होल्डर और ये स्टंप के बाहर, जैसे देखा कि पढ़ने के बाद और बाहर की तरफ सोचा देखा और अपना शरीर बल्ला को हटा लिया, जानते कि यहाँ पर 1 रन मिलने वाला है। और इसी के साथ टीम पहुंचे। रेस्ट ऑफ इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान के बाद 11। अभी तक 11 रन है, 3 विकेट, 2 ओवर 2 बॉल। होल्डर बॉलिंग कर रहे हैं, सामने ठाकुर। चांस लिया इस बार, मिड विकेट पे फील्डर मौजूद सकलेन, एक सिंगल आसानी से। तो बहुत मुश्किल हो रही है इस पारी में बाउंड्री ढूंढने में रेस्ट ऑफ इंडिया को। अभी तक 12 रन, 3 विकेट, 2 ओवर 3 बॉल। ज्यादातर सिंगल डबल पे ध्यान दे रहे हैं और तारीफ करने होंगे गेंदबाजी जो दिखी इस मैच में वेस्ट बंगाल स्टार की तरफ से। और ड्रोन व्यू देखिए, मानो किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में हम लोग बैठे हो। बहुत ही खूबसूरत शहर हावड़ा स्टेशन के बिल्कुल बगल में ये ग्राउंड, गुलमोहर क्रिकेट ग्राउंड। शाम के खूबसूरत दृश्य आपके सामने है। संजू चांस ले इस बार, फील्डर पीछे भागेंगे बॉल तक, लेकिन सिर्फ बाहर से बॉल लाने के लिए। बहुत देर बाद बेहतरीन शॉट संजू कनौजिया, मिलेंगे 6 रन। और ये छक्का संजू कनौजिया के लिए बहुत ही अच्छी की बात है, जैसे कि रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए ये चाह रहे थे कि यहाँ से छक्का आए, एक लंबा ओवर आए, और चाहेंगे कि इस ओवर में, जो कि तीसरे ओवर में और 1-2 छक्का मारे। 3 विकेट के बाद 18। दर्शक चाह रहे कि आज बंगाल और रेस्ट ऑफ इंडिया के बेस में ये मैच एक अच्छा मैच देखने को मिले। पूरे बंगाल और ऑल इंडिया में सारे क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट लवर्स ने अभी भी tenniscricket.in पर इस मैच का आनंद ले रहे। और अच्छी सोच था स्टंप के ऊपर, और सिर्फ दिशा दिखाया उन्होंने। और जहां अभिजीत बेरा ने गेंद को उठाया, इस गेंद पर 1 ही रन मिल पाए, और इसी के साथ 19। बहुत ही खूबसूरत ये हावड़ा स्टेशन बिल्कुल बगल में, जो लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं। शॉट ऑफ लेथ, और ये भी देखना चाहेंगे कब तक आप खामोश रखेंगे होल्डर। इस बार विश्वजीत ठाकुर, इससे पहले संजू कनौजिया, इस बार ठाकुर। कमाल की बैटिंग, स्कोर मूव 25, 3 ओवर 25, 3 विकेट। जो मोमेंटम ढूंढ रहे थे वो मिला रेस्ट ऑफ इंडिया को। बहुत जल्दी पोजीशन में टारगेट किया था इससे पहले संजू कनौजिया, उसके बाद विश्वजीत ठाकुर। मिला 6 रन, 3 ओवर 25, 3 विकेट। अभी भी यहां से 5 ओवर बाकी है। और रेस्ट ऑफ इंडिया की जो सोच था कि ये ओवर बड़ा ओवर होना चाहिए, थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हो गया। और अभी 3 ओवर के बाद देखिए 25, यहाँ एक अच्छा ओवर रहा रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए। और इसी 3 ओवर के बाद हम तुलना करें तो काफी पीछे था वेस्ट ऑफ बंगाल, लेकिन अभी भी 30 गेंद बचे हुए। और जैसे कि 30 गेंद में 48 रन चाहिए रेस्ट ऑफ इंडिया के जीतने के लिए। बॉलिंग में किसे लाएंगे अब, क्योंकि 5 गेंदबाज आपको यूज करने होंगे। अभी तक 3 गेंदबाज, पहले सरोज, फिर टप्पू, फिर होल्डर। बॉलिंग के लिए फिर से बुलाया टप्पू दास को। 3 ओवर 25, 3 विकेट। शाम का खूबसूरत नजारा आपके सामने, जो फैक्ट हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं। 600 से ज्यादा ट्रेन हर दिन इस स्टेशन से आप देख पाएंगे। 10 लाख से ज्यादा लोग हर दिन आना जाना होता है इस हावड़ा स्टेशन में। टप्पू का बॉलिंग करने का मौका बन सकता है। क्या जॉन्टी भाग सकते थे? जॉन्टी का ये कॉल होना चाहिए था, या फिर टप्पू कूद कर रहे थे वो मेरा है, लेकिन थोड़ी सी मिस जजमेंट और एक हाफ चांस गवाते हुए।
तुपो का सोच था कि जंटी आएंगे और कैच लेंगे और इसलिए खुद रोक गए थे, लेकिन ये हाफ चांस था, लेकिन ये चांस को तो फुल चांस होना चाहिए था क्योंकि आपको विकेट चाहिए। जॉन्टी जरूर अफसोस करेंगे, एक चांस बन सकता था, अगर भागते तो शायद हाथ में बॉल उनका आता, लेकिन कैच हुआ नहीं, काफी दूर थे। सेंसिबल क्रिकेट, हल्के हाथों से प्लेस किया मिड विकेट की तरफ, 2 की मांग कर रहे हैं लेकिन मना कर रहे हैं, 1 रन आएगा। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो हर गिरावट से कुछ सीखता है और उठकर फिर से आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। संजू और साथ में ठाकुर दोनों पार्टनरशिप बनाना चाह रहे हैं। शाम का ये खूबसूरत दृश्य क्या बेहतरीन है, ड्रोन व्यू आपके सामने। थैंक यू सो मच जेबी ब्रदर्स, विजय अग्रवाल जी। फील्डिंग में कुछ फेरबदल चाह रहे हैं ठाकुर के लिए, लेंथ में क्या कुछ परिवर्तन चाहेंगे। टप्पू पॉइंट मौजूद है, शॉर्ट कवर बुलाया सिंगल सेव करने के लिए, सामने तैयार ठाकुर। कहां आप सिंगल रोकेंगे इस बार, ऑन साइड दिशा दिखाया, कलाइयों का बहुत अच्छा प्रयोग, 1 रन आएगा। सारे दर्शक काफी इंतजार कर रहे कि ये मैच किसका जीत होगा, और बेस्ट ऑफ बंगाल या रेस्ट ऑफ इंडिया का। बहुत मजा आ गया ये मैच देखकर, जो कि शुरुआत में जगत नहीं है, कुछ लोग ये कह रहे थे कि जगत किस लिए नहीं है इस टूर्नामेंट में। देखिए जगत कुछ पर्सनल कारणों से वो इस मैच में है नहीं अवेलेबल। 3 ओवर 3 बॉल 27, 3 विकेट। सामने संजू स्ट्राइक पे तैयार अगली बॉल के लिए, काफी रिलैक्स होकर खेलते रविदा। इनकी बैटिंग देखकर मानो बैटिंग बहुत इजी है। फिर से एक बार हल्के हाथों से बॉल को टहलाया लॉन्ग ऑन पे, पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन आएगा। और सही सोच था, जो कि पिछले ओवर एक बड़ा ओवर था और इसीलिए थोड़ा देखभाल करके खेल रहे। यहाँ पर 3 विकेट गिर चुका है, 28 रन है, लेकिन ये जो साझेदारी इससे ही चल रहा है, जो साझेदारी चाह रहे थे कि रेस्ट ऑफ इंडिया ने, लेकिन दोनों बल्लेबाज की जो सोच है यहाँ से विकेट ना गिरे और ऐसे रनों की रफ्तार चलते रहे। और ये देखिए यहाँ पर मिस फील्डिंग और भाग रहे फील्डर, देखना है कि 1 रन, दूसरा रन भी मिल जाएगा, एक मौका है रन आउट का, लेकिन यहाँ पर अंपायर की निर्णय जो कि पहुंच चुके हैं, जैसे कि अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए पहला रन इतने तेजी के साथ लिया था, जैसे देखा कि वहां पर मिस फील्ड हुए और इसीलिए सोच 2 रन के लिए, और ये 2 रन काफी इंपॉर्टेंट है टीम के लिए। आप मिस फील्ड की बजाय 1 रन जरूर रेस्ट ऑफ इंडिया के जितने भी फैन है खुश होंगे। अभी भी चौथा ओवर जारी, और ये देखिए उठाकर खेल दिया, कोई फील्डर नहीं, लेकिन शॉट में उतने ताकत नहीं मिला था, जो कि दूर था राजपाश आगे आए। जैसे कि ओवर की समाप्ति 4 के बाद 31 रेस्ट ऑफ इंडिया। अब चाहिए जीतने के लिए 42 रन 24 बॉल से, तो मैच अभी भी बना हुआ है। संजू बहुत अच्छे कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो जानते हैं 5 गेंदबाज टोटल इस्तेमाल किए जाएंगे इस पारी में, तो वो ऑप्शन ढूंढ सकते हैं कि किस ओवर में चांस लिया जा सकता है। दर्शक काफी एक्साइटेड है इस मैच के बाद जो मेगा फाइनल होगा, फाइनल बैटल। एक तरफ होंगे एडीएस हावड़ा कैप्टन दानी, तो एक तरफ कोलकाता राइडर्स संजू कनौजिया, तो 2 दिल्ली के कैप्टन होंगे आमने सामने इस मैच के बाद। फिलहाल दोनों एक टीम में खेल रहे हैं, तो ये मोहब्बत है, ये प्यार है जो दिया है जेवीए ब्रदर्स मिस्टर विजय अग्रवाल जी। 31 4 3 31 3 विकेट 4 ओवर का खेल हुआ संपन्न अभी तक। किसे लाएंगे अब बॉलिंग के लिए? बॉलिंग के लिए बढ़ रहे सरोज, 5वां ओवर अपने कोटे का आखिरी ओवर। और आज का जो कि फाइनल मैच एक तरफ हावड़ा और दूसरे तरफ कोलकाता राइडर्स और एडीएस के बीच में,
ये मुकाबला जरूर एक फाइट होगा जो कि चैंपियन बनने का मौका है दोनों टीम के सामने। और जिस तरह से लीग में देखिए, जिस तरह से एडीएस ने पहले हारे, उसके बाद लगातार जीत हुई। और कोलकाता राइडर्स की बात करें जो कि टूर्नामेंट की पहले दिन जो कि डे 1 में उनका जीत हुई थी, और लीग में देखिए आखिरी जो कि डे 3 का जो आखिरी मैच था वहां पर भी जीत हुई। और उसके बाद देखिए एक के बाद एक जीत, दोनों टीम के बीच में एक महा मुकाबला होगा, एक महासंग्राम होगा। बॉलिंग के लिए तैयार, स्ट्राइक पे बॉलिंग के लिए सरोज, स्ट्राइक पे तैयार ठाकुर। 4 ओवर 31, 3 विकेट बचे, 24 में अब चाहिए 42 जीतने के लिए। फर्स्ट बॉल, चल पड़े सरोज। पहली बॉल फुल लेंथ बॉल, सामने हल्के हाथों से खेला, सिंगल मिला नहीं। तो इस वक्त अगर 2-3 डॉट बॉल कराएंगे तो फिर बल्लेबाज के मन में भी कुछ ना कुछ सवाल आएगा कि शायद आप बड़ा शॉट ट्राई कर सकते हैं और उसी ट्राई में बहुत कुछ हो सकता है, या फिर आप रन हासिल कर लेंगे या फिर विकेट गंवा देंगे। तो एक चांसेस ढूंढ रहे हैं बैटर और बॉलर सरोज और ठाकुर। इस वक्त देखिए गेस्ट हाउस से, हमारे वीआईपी बॉक्स से फुल टॉस बॉल जो क्या होता है, डॉट बॉल के बाद दबाव होगा और दबाव का फायदा मिल गया ठाकुर को। फुल टॉस बॉल डिपॉजिट किया दर्शकों के बीच में, मिला 6 रन। सरोज ये नहीं चाह रहे थे कि फुल टॉस गेंद डाले, लेकिन फुल टॉस था, एक पावर दिखाया, कनेक्शन देखिए, ये शॉट देखिए रिप्ले में, ये फुल टॉस मिडलिंग अच्छा था, कनेक्शन अच्छा था और पहुंचे मैक्सिमम 6 रन के लिए। और इस चक्के के साथ रेस्ट ऑफ इंडिया का स्कोर 37। यहां पर अच्छी साझेदारी, दूसरे ओवर में विकेट गिरा था, उसके बाद देखिए ये साझेदारी कितने बेहतरीन साझेदारी रही। शॉट ऑफ लेन, फिर से वही प्रयास, लेकिन इस बार चूक गए। अंपायर की तरफ देख रहे हैं, वाइड की मांग कर रहे हैं, लेकिन अंपायर ने कहा अंदर बॉल। अच्छी वापसी सरोज, जो लगातार कह रहे हैं वीआईपी गेस्ट हाउस से हमारे गेस्ट लोग, बहुत सारे लोग आए देखने के लिए मैच है। शुक्रिया आप सभी का, स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू वेस्ट बंगाल टेनिस क्रिकेट लीग। जड़ में करने की कोशिश से कवर की तरफ खेले, पीछे फील्डर भागेंगे, 2 की मांग कर रहे हैं, मना किया, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक तरफ संजू, एक तरफ दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। और ये शाम बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसके बाद एक और मैच है, फाइनल बैटल। रिवर्स बेहतरीन शॉट, फील्डर बहुत दूर खड़े हैं, थर्ड मिनट के फील्डर, कोई मौका नहीं और प्राप्त करेंगे 4 रन। संजू कनौजिया, आपने इस वक्त सबका दिल जीत लिया। स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 42 रन। अब रविदा चाहिए 31 जीतने के लिए, धीरे धीरे फासला कम कर रहे हैं। और दोनों बल्लेबाज की सही सोच था, जैसे कि 3 विकेट गिरने के बाद जो तीसरे ओवर में एक बड़ा ओवर था, उसके बाद देखिए ये साझेदारी बहुत ही शानदार रही टीम के लिए। और सिर्फ साझेदारी अच्छी नहीं, उसके बाद रनों की रफ्तार भी काफी आगे चल रहा है। 5वां ओवर की आखिरी गेंद, ये देखिए वीआईपी बॉक्स जहां सारे से सारे मेहमान हैं और इस टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजर विजय अग्रवाल जी है। और ये थोड़ी नीचे रह गए थे और थोड़ा वाइड इस गाली के दिशा में, लेकिन 1 रन मिल पाएगा। और ये दोनों बल्लेबाज की सोच सही था, जो सोच रहे थे कि यहाँ से एक अच्छी साझेदारी चाहिए और वही साझेदारी मिला। ओवर की समाप्ति 5 ओवर के बाद 43 रन 3 विकेट, 43 for 3 आफ्टर एंड ऑफ 5 ओवर्स। अब चाहिए यहाँ से 18 बॉल से 30 जीतने के लिए, 30 नीडेड इन 18 बॉल्स। हर ओवर 10 के आसपास बनाने होंगे जीतने के लिए। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती है, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। और कैसे बदलेंगे संजू, क्योंकि समस्याएं बहुत आई शुरू से, जो विकेट गंवा रहे थे उस स्थिति से मैच को निकाले अभी तक। अब बची 18 में 30 जीतने के लिए। अब देखिए शुरू के समय जो रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए था 9.17, लेकिन अभी ज्यादा फर्क नहीं है, जो कि रिक्वायर्ड रन रेट अभी 10 प्रति ओवर के हिसाब से देखे। बॉलिंग लिया हुआ है फिर से एक बार सुब्रनील रॉय, छोर बदला इस बार।
फोकस खुद पे करो जब तक लोग तुम पर फोकस ना करने लग जाए, और फिलहाल फोकस होगी होल्डर के ऊपर। 18 बॉल 30 जीतने के लिए। समर्थक जो है रेस्ट ऑफ इंडिया काफी खुश होंगे, जो वेस्ट बंगाल स्टार के समर्थक है थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। 18 बॉल 30 जीतने के लिए। संजू कनौजिया स्ट्राइक पे। 18 बॉल 30 से कौन बाजी मारेंगे, किसकी होगी जीत किसकी होगी हार, हम सभी कर रहे हैं इंतजार। 18 में चाहिए अब 30 जीतने के लिए। और जंटी कह रहे कि यहाँ पर अच्छा फील्डिंग होना चाहिए, गेंदबाज भी अच्छा होना चाहिए। और पहली गेंद वाइट, जैसे कि अपस्टंप की बाहर डालना चाह रहे थे और भी बाहर की तरफ गए, और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है कि जो कि अभी भी 44, और अभी 3 ओवर बाकी है जो कि 18 गेंद में चाहिए 29 रन। ओवर की अगली बॉल संजू तैयार स्ट्राइक पे। फिर से एक बार ऑफ स्टंप से बाहर, 2 लगातार वाइड बॉल। ये चिंता की विषय है, एक्स्ट्रा रन 2 एक्स्ट्रा रन आए, वो भी वाइड के रूप में, यानी अब चाहिए जीतने के लिए 28 रन। 18 में 28 है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। तो होल्डर संघर्ष कर रहे हैं, 2 लगातार वाइड दिए, अब कमबैक जरूर करना चाहेंगे। बेस्ट ऑफ बंगाल को विकेट चाहिए अगर ये मैच जीतना है। लगातार देखिए, लगातार 3 वाइड, और क्या सोचे कि अपस्टंप की बाहर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पहले रफ्तार से ज्यादा ध्यान देना होगा अपने लाइन और लेद में। और 3 बोनस है, अभी तक ओवर की शुरुआत नहीं हुई, 3 बोनस रन चले आए। लगातार 3 वाइड। फिर से एक बार तैयार स्ट्राइक पे संजू, चांस लिया, मौका बन सकता है फील्डर बॉल के नीचे, क्या ये कैच होगा? जो कहते हैं संघर्ष बड़ा तो रिवार्ड बड़ा होगा। और बेस्ट ऑफ बंगाल को जब विकेट चाहिए था, और लगातार 3 वाइड के बाद बल्लेबाज ने गए, जो कि टाइमिंग सही नहीं था, शॉर्ट सिलेक्शन में थोड़ा गलत किया है, और इसीलिए यहां पर कैच जो कि फील्डर के हाथ में। 4 विकेट, यहां से कोई ट्विस्ट होगा? बिल्कुल रविदा, 3 लगातार वाइड दिए, और जो कह रहे थे संघर्ष कर रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं, और अच्छा सेटल किया, लगातार बाहर रखे, उसके बाद थोड़ा सा अंदर, और सफलता मिला। और ये देखिए कैच, बहुत अच्छा कैच। इस टूर्नामेंट की कैच की हम बात करें, बापी यादव की यादगार कैच, 1 नहीं 2 नहीं 3 जो कैच है इस टूर्नामेंट में, और जिस तरह से हर क्रिकेट लवर्स के दिल को छू लिया वो कैच। आप बल्लेबाजी के लिए आए हैं करण अंबाला, और भारतीय टेनिस क्रिकेट में ये सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी है, और देखना है कि होल्डर निश्चित रूप से और इसी ओवर में और भी विकेट चाहेंगे, क्योंकि बेस्ट ऑफ बंगाल को विकेट चाहिए मैच में वापसी के लिए। 5.1 ओवर 46। बैटिंग के लिए हुआ है करण अंबाला, एक तरफ ठाकुर। तो मैच बना हुआ अभी भी, 5 ओवर 1 बॉल 46, 4 विकेट। हल्के हाथों से खेला, सिंगल 4 रन लेके मना किया, कोई रन नहीं इस बॉल से। कमाल की वापसी होल्डर, 3 लगातार वाइड, उसके बाद 2 अच्छी गेंद, 1 विकेट, फिर डॉट बॉल। ये मैच आने वाली ओवर, जो कि इसके बाद जो ओवर होगा 2 ओवर, वो भी बहुत अच्छा ओवर होना चाहिए बंगाल के लिए। लेकिन दोनों बल्लेबाज की बात करें, करण अंबाला, विश्वजीत ठाकुर, अभी तक 18 रन बनाए विश्वजीत ठाकुर, और एक मौका है और 1 विकेट सही समय पर बेस्ट ऑफ बंगाल के लिए, एक बेस्ट विकेट। और जैसे कि रिवर्स स्वीप खेलना चाह रहे थे, और खास टाइमिंग नहीं, जंट की बात करें, जिस तरफ से दाएं तरफ जाकर कैच लिया है। बिल्कुल रविदा, और ये बहुत बड़ा विकेट है करण अंबाला, जिस तरह से खेले मैच में, फिर से एक बार वापस आते हुए पूरे तरीके से वेस्ट बंगाल स्टार, और मुश्किल में रेस्ट ऑफ इंडिया।
5 विकेट गवा दिए आधी टीम डग आउट में। कम बैक कैसे करेंगे ये एक बार फिर से रिप्ले में देखना चाहेंगे। रिवर्स के लिए गए थे और पीछे जॉन्टी बेहतरीन विकेट कीपर काफी हद तक भागे और कैच को पूरा किया। होल्डर का ये सेलिब्रेशन, यस मैंने करके दिखाया। विकेट मिला, स्कोर 46-5 विकेट अभी तक रेस्ट ऑफ इंडिया। मजा आ गया ये मैच देखकर, काफी मजा आ गया। हर लोग ये चाह रहे थे कि और बेस्ट ऑफ बंगाल का जितने भी स्टार है और रेस्ट ऑफ इंडिया का जितने भी स्टार है ये मैच काफी अच्छा हो, और सही समय पर पहुंच गया ये मैच। 5 विकेट गिरा है, 5 मुख्य बैट्समैन आउट हुए बेस्ट ऑफ इंडिया का। लेकिन होल्डर की बात करें, पहली ओवर बहुत ही खराब थी, काफी प्रोडक्टिव ओवर था। उसके बाद देखिए लगातार 3 वाइड, और उसके बाद जिस तरह से गेंदबाजी की है और वो विकेट दिलाए। बैटिंग ले बाय विजय पावले। विजय क्या विजय दिला पाएंगे? 5 ओवर 3 बॉल 46 रन 5 विकेट। एक तरफ विश्वजीत ठाकुर, दोनों के अंदर एबिलिटी है, बड़े शॉट लगाते हैं, सिचुएशन को समझते हैं। और क्या प्लानिंग होगी बॉलिंग में रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए वेस्ट बंगाल स्टार की तरफ से, क्योंकि विकेट जो चाहिए हर अंतराल पे वो ला रहे हैं। 46 रन 5 विकेट 5 ओवर 3 बॉल। यहां से भी चाहिए जीतने के लिए 27 रन, 15 बॉल जीतने के लिए चाहिए 27 रन अभी भी। तो एक अच्छा ओवर फिर से वापस आ सकती है इस मैच में दोनों टीम। बॉलिंग के लिए तैयार सुब्रनील रॉय होल्डर, सामने स्ट्राइक पे विजय पावले। नेक्स्ट बॉल, बेहतरीन बॉलिंग वाइड के बाद मानो होल्डर कुछ अलग नजर आ रहे हैं। अब एक और डॉट बॉल, अभी तक 3 वाइड जो दिए उसके बाद एक भी बल्ले से रन आया नहीं, और 2 विकेट। कमाल का ओवर अभी तक। होल्डर सुब्रनील रॉय होल्डर, चल पड़े होल्डर। रिवर्स की कोशिश, अपील काफी तेज, और अंपायर इंटरेस्ट तो दिखा रहे थे लेकिन ऐसा लगा उनको लगा शायद बॉल बाहर निकल रही हो कि बल्ले पे लगी हो। वही कह रहे हैं बल्ले पे लगी है, वही कह रहे हैं अंपायर की मुझे ऐसा लगा बट बल्ले पे लगी थी, ऐसा उन्होंने कंफर्मेशन दिया और इसलिए नॉट आउट दिया। और अभी भी बात कर रहे हैं इस, अभी भी अपील जारी है, लेकिन अंपायर का जो निर्णय होता है उसको सम्मान देना होगा। ओके, मैच कंटिन्यू किया जाए, पार्ट ऑफ द गेम। अभी तक स्कोर 46 5 विकेट 5 ओवर 4 बॉल। इसके बाद फाइनल बैटल, एक तरफ एडीएस हावड़ा सुरेश भट्ट टीम के कैप्टन, एक तरफ होंगे संजू कनौजिया कैप्टन ऑफ कोलकाता राइडर्स। कौन बनेंगे चैंपियन? और अभी भी 27 रन दूर अपने जीत के लिए। काफी मजा आ गया इस मैच में, और जिस तरह से सुब्रनील होल्डर ने अपने गेंदबाजी में आग लगा दिया अपने दूसरे ओवर में, और विजय पावले जो कि दूसरे छोर पर अपील, और ये आउट। और क्या आग लगा दिया होल्डर ने अपने ओवर। इस ओवर में देखिए पहले ओवर में थोड़ा प्रोडक्टिव ओवर था, उसके बाद इस ओवर में 3 विकेट। तो कैसे आप कमबैक करते हैं ये इंपॉर्टेंट था, और कमबैक किया होल्डर। 3 लगातार वाइड, उसके बाद पीछे मुड़ के देखे नहीं, और इस ओवर में 4 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किया। 3 वाइड और 1 बल्ले से रन, यानी 4 रन कुल मिलाकर। बेहतरीन ओवर सुब्रनील रॉय होल्डर। 6 ओवर का खेल हुआ समाप्त, 47, 6 विकेट बचे, 12 बॉल। रविदा यहां से चाहिए 26 रन, और 12 गेंद 26 रन चाहिए जीतने के लिए और बेस्ट ऑफ इंडिया को। लेकिन होल्डर ये कह रहे थे कि 3 वाइड, ये कह रहे थे कि मुझे इस ओवर में 3 विकेट मिलने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, 3 वाइड देकर अगर 3 विकेट ले लें तो आप कह सकते हैं सौदा मंजूर है। खुश होंगे इस वक्त सभी समर्थक वेस्ट बंगाल स्टार के। 12 बॉल अब चाहिए 26 जीतने के लिए। 26 नीडेड इन 12 बॉल्स। बैटिंग ले हमारे राणा अविनाश। राणा अविनाश एक तरफ और साथ में विजय पावले बॉलिंग के लिए बुलाया। दिवाकर गायन 7वां ओवर बॉलिंग करेंगे, निर्णायक ओवर ही है रविदा। बहुत खुशी मिली सारे क्रिकेट प्रेमियों को, और जहां 2 ओवर में चाहिए 26 यानी 26 रन। राणा अविनाश, विजय पावले
दोनों बल्लेबाज के ऊपर काफी जिम्मेदारी है और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए अभी भी रन चाहिए। देखिए आने वाली 2 गेंदबाज के ऊपर काफी जिम्मेदारी होगा वेस्ट ऑफ बंगाल के लिए। और बंगाल के सारे से सारे स्टार खिलाड़ी जिस तरह से ये फाइट दे रहा है, और दिवाकर गायन जो कि बंगाल की एक स्टार गेंदबाज, कला का उपयोग किया है, जैसे पीछे फील्डर है, 1 रन मिल पाएगा और पहली गेंद पर 1 रन, जो कि 11 में चाहिए 25 रन। 11 बॉल 25 जीतने के लिए धीरे धीरे मैच पकड़ में बनाते हुए वेस्ट बंगाल स्टार क्या कमबैक कर पाएंगे? राणा विनाश रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए एक अच्छा ओवर ढूंढना होगा, आपको बड़े ओवर लाने होंगे। अगर आप 10, 12, 13 रन लाते एक ओवर में तो फिर आप कह सकते हैं आखिरी ओवर आप चांस बना सकते हैं अपने लिए, लेकिन ये ओवर आपको अच्छा करना होगा, चाहे दिवाकर की नजर से देखें या फिर राणा विनाश विजय पावले की नजर से देखें। ओवर की अगली बॉल तैयार होते हुए राणा विनाश स्ट्राइक पे। पहले दिन से मैच को देखें, बहुत सारे मैच इस ग्राउंड पे। अपील हुई और अंपायर ने कहा ओयूटी, एक और विकेट, विकेट नंबर 7, वापस जाएंगे राणा विनाश। तो मैच से पहले बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे दोनों, राणा विनाश और दिवाकर गायन, उसी का फायदा मिला दिवाकर को, चलता किया राणा विनाश को। विकेट नंबर 7 और विकेट नंबर 7 दिवाकर गायन को विकेट मिला। बंगाल की क्रिकेट प्रेमियों को खुशी मिला है। बंगाल हो, रेस्ट ऑफ इंडिया हो, जो भी टीम जीते, लेकिन हम सब इंडियन है, हम सब भारतीय है। पार्ट ऑफ गेम है क्रिकेट, क्रिकेट में हार जीत होते रहते हैं, लेकिन हम सभी लोग भारतीय है। जी हाँ, जीत क्रिकेट की होगी, ये कंफर्म है। बैटिंग के लिए बारे राजू मुखिया, टीम का स्कोर 48, 48 रन, 7 विकेट। बची अब 10 बॉल, 10 बॉल में चाहिए जीतने के लिए अब यहां से 25 रन। अगर हिसाब देखा जाए तो ये रन बनते हैं, लेकिन मुश्किल वो है विकेट। 7 विकेट के बाद ये सेट बैटर कोई है नहीं। एक तरफ जरूर विजय पावले वो बड़े शॉट लगा सकते हैं, राजू मुखिया इनके अंदर भी एबिलिटी है। 10 में 25 क्या बना पाएंगे? सामने राजू मुखिया। राजू मुखिया हमेशा बल्लेबाजी अच्छी करते हैं गेंदबाजी के साथ। ये देखिए गेंदबाजी, बहुत ही फाइन गेंदबाजी। और जब गेंदबाज को विकेट मिलता है तो उनको मनोबल कितने ऊपर जाता है, कितने हायर लेवल में जाता है। काफी तेज अपील हुई थी और काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे थे दिवाकर, लेकिन अंपायर ने नकारा। तो अक्सर ये देखते हैं हम लोग, हर गेंदबाज को ऐसा लगता है जब भी बॉल पैर पे लगती है बैटर के, तो उनको लगता है कि शायद ये कंफर्म एलबीडब्ल्यू है, लेकिन अंपायर ने कहा नॉट आउट, अगली बॉल। और जैसे कि ये लग रहा था कि लेफ्ट स्टंप की बाहर की तरफ जा रहे थे, इसलिए अंपायर ने नॉट आउट कहा। टीम का स्कोर 49, 7 विकेट, 6 ओवर 3 बॉल। लाजवाब बॉलिंग है इस बार, बाहर निकली पड़ने के बाद चारों खाने चित विजय पावले को रन ने इस बॉल से। और ये देखिए शोर उठा रहे बंगाल के जितने क्रिकेट लवर्स यहाँ बैठे हैं, काफी खुश, क्योंकि अभी भी मैच अभी भी बहुत कुछ बाकी है। नाटक आखिरी ओवर में तो अच्छा होता है। छह ओवर 4 बॉल, 49 रन, 7 विकेट। अब 8 बॉल से 8 बॉल बचे और चाहिए 24 जीतने के लिए। जड़ में करने की कोशिश, पीछे फील्डर, एक ही रन आएगा। अच्छा ओवर अभी तक दिवाकर का, और सिंगल के साथ टीम का स्कोर 50 कम्स अप, 50 रन आता हुआ। अब चाहिए जीतने के लिए 7 बॉल से 23 रन। 7 गेंद 23 रन चाहिए, जो कि हर गेंद में 3 के ऊपर रन चाहिए। राजू मुखिया सोच रहे हैं, विजय पावले सोच रहे हैं क्या करेंगे, यहां से थोड़ा अटैक में जाएंगे। ये देखिए प्रामाणिक कितने खुश होंगे, सरोज प्रामाणिक, शुरुआत विकेट उनके नाम में। और ये देखिए जैसे कि 2 फील्डर के बीच में बहुत फाइन फील्डिंग,
और अपने दाएं तरफ जाकर जिस तरह से फील्ड किया सरोज प्रामाणिक ने, वो कमाल फील्डिंग। और इसी के साथ एक अच्छा ओवर रहा और बेस्ट ऑफ बंगाल के लिए ये तालियों की आवाज़ देखिए, बेस्ट ऑफ बंगाल के जितने समर्थक बैठे हैं। और क्यों ना खुशी हो, दिवाकर की विकेट आए और पिछले ओवर में होल्डर ने जो हाथ लगा दिए थे अपने पहले ओवर में 3 विकेट लेकर, तो आखिरी 2 ओवर में 4 विकेट। ओवर की समाप्ति और आखिरी ओवर 6 में चाहिए 23 जीतने के लिए। 23 नीडेड इन 6 बॉल। क्या विजय पावले जीत दिला पाएंगे? क्या विजय दिला पाएंगे? 6 बॉल 23 जीतने के लिए। एक तरफ विजय, एक तरफ राजू मुखिया बॉलिंग करेंगे। जॉन्टी सरकार 6 बॉल 23 जीतने के लिए। आखिरी 6 बॉल किसकी होगी जीत? रेस्ट ऑफ इंडिया या फिर वेस्ट बंगाल स्टार? 6 बॉल 23। फील्ड सेटअप अगर देखा जाए, कवर पीछे, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। ओवर की पहली बॉल, सामने विजय। पहली बॉल शॉट ऑफ लेंथ, हुक करने का प्रयास, मौका था लेकिन मिस कर बैठे विजय। रन वाली बॉल थी, मिस कर बैठे। अब चाहिए 5 में 23। काफी मुश्किल यहां पर जीतने के लिए, अभी भी मौका है। कोशिश कर रहे कि जो कि फाइनल के बीच में जो गैप ढूंढ रहे थे, हलचल ने कमाल फील्डिंग की है। और पहले 2 गेंद में अभी भी कोई रन नहीं। ये देखिए ताली की आवाज क्यों ना हो। 72 करने के बाद जिस तरह से फाइट की है, शुरू में सरोज, उसके बाद तोपो, और फिर एक बार स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में खेलना चाह रहे थे। शॉट में उतने जान नहीं था, जो जान देना चाहिए था, जो पावर देना चाहिए था। हलचल कुछ कह रहे अपने फैंस को, कुछ दिखा रहे, शायद सेलिब्रेट कर रहे विजय। पीछे फील्डर मौजूद है, 1 रन की तलाश में रहेंगे राजू। सिंगल साहब काम बनेगा नहीं। जीत के काफी करीब अब वेस्ट बंगाल स्टार। बचे अब 2 बॉल। अब देखिए 6,500 क्रिकेट प्रेमी हमारी टेनिस क्रिकेट .in पर। हेलीकॉप्टर उड़ी है, कैच का कॉल है, पीछे फील्डर, होल्डर। जॉन्टी थोड़े से नाखुश है, कह रहे कैच आप क्यों नहीं ट्राई किए? कैच आपको ट्राई करना चाहिए था। तो जॉन्टी विकेट के लिए देख रहे थे अभी भी। होल्डर कह रहे हैं कि बहुत दूर था मैं आप बॉल से। मैच में कुछ नहीं है, सिर्फ औपचारिकता है। और बेस्ट ऑफ बंगाल ने आज बेस्ट दे दिया। शुरुआत अच्छी रही, शुरुआती में 1 ओवर, उसके बाद तोपो का 2 विकेट, उसके बाद होल्डर और दिवाकर का विकेट। मैच की आखिरी बॉल जड़ में करने की कोशिश, रन लेने से मना किया। इसी के साथ 19 रन से ये मैच जीता वेस्ट बंगाल स्टार। कमाल का मैच, बेहतरीन परफॉर्मेंस। वेस्ट बंगाल स्टार 19 रन से ये मैच जीता। वेस्ट बंगाल स्टार वेल प्लेड। रेस्ट ऑफ इंडिया हार जीत पार्ट ऑफ द गेम। टीम ओनर देखिए किस तरह से खुश होंगे धनंजय सिंह। बहुत खुशी मिली, बेस्ट ऑफ बंगाल का जीत हुई। थैंक यू जितने भी हमारे क्रिकेट फैंस हैं, जो भी मैच लगातार देख रहे हैं पहले दिन से। अब कुछ ही देर में हम लोग फाइनल बैटल की तरफ बढ़ेंगे। कांग्रेचुलेशन वेस्ट बंगाल स्टार। ये मैच समरी आपके सामने। क्या घटा, टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। रेस्ट ऑफ इंडिया पहले बैटिंग करते हुए बनाए 72 रन वेस्ट बंगाल स्टार, और पीछा करने उतरे रेस्ट ऑफ इंडिया। मात्र बनाए 53 रन 8 ओवर में 7 विकेट खोकर। टॉस बहुत बड़ा फैक्टर था लेकिन उसका कुछ खास फायदा मिला नहीं। बेहतरीन बल्लेबाजी, पीकू पॉल 24 बनाए, जॉन्टी सरकार 20, सागर अली 11, राज पासवान 5, करण अंबाला 2 विकेट लिए, अनुराग 2 विकेट, विजय पावले कोई विकेट नहीं, राजू कोई विकेट नहीं, विशेष ठाकुर 18 रन, संजू कनौजिया 16 रन, मुन्ना शेख 6 रन, विजय पावले 5 रन, होल्डर 3 विकेट। कमाल का स्पेल इनका रहा था। टोपू 2 विकेट 8 रन देकर, दिवाकर 1 ओवर 3 विकेट इनके नाम